बेसिकली ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट. सो ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट क्या है कि ये बेसिकली जो साइंटिफिक मूवमेंट था इससे पहले वाला जो हम पढ़ चुके हैं उससे क्या था, अहेड था, उसे अहेड था. और ये क्या सोचता था कि दिस मूवमेंट इमर्ज एज अ रिस्पॉन्स टू सम ऑफ द लिमिटेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी. So you all know that we have studied scientific management theory. Over there is lot of emphasis on efficiency, a lot of emphasis on effectiveness, lot of emphasis on the physical conditions, on there is in the words of F.W. Taylor as well, and Luther Gulick as well, Lyndon Urwick as well, and others, that if you increase the incentive, the monetary things and physical conditions, then definitely there is an increase in the production, right? Productivity increases. And if you increase the supervision, for an example, F.W. Taylor, he said there should be 8 supervisors, right? Planning and executing, four different. So the idea was to have a very closed, clear watch on the people all the time. But that was not the case with the human relations movement. So according to scientific management, there was a logic to action and knowledge that boosted workplace motivation. So लॉजिक है एक्शंस में और नॉलेज में, अगर ज्यादा करोगे तो ये क्या होगा, हमेशा मोटिवेशन मिलेगा लोगों को. और एफिशिएंसी क्या होगी, रिजल्ट होगी ऑपरेशन, लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट की. कि एफिशिएंसी हमेशा लीगली नया कानून ले आओ, नई मशीन ले आओ, नई ट्रेनिंग दे दो, सो एफिशिएंसी इज बाउंड टू इंक्रीज, राइट? एंड देयर वाज आल्सो दिस वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द थिंग्स. रूल ऑफ थंब को हटाओ और नया कुछ लेके आओ, innovative method, one best way of doing the things. And there was tools, there was scientific selection of tools, and bringing the men scientifically selected and the scientific methods together, right? So all these things were driven towards the physical aspect, physiological conditions of work, rather than the human aspect of work. Was there something beyond the physical conditions of work which may have affected the working of something? That is what is being challenged by the human relations approach. And Elton Mayo in his studies have been able to bring that on the surface, right? So जो scientific management है कि there is a best way of doing work, factory workers को to be efficient, and if they receive proper training and necessary tools, and the production would increase, and there would be the production, if this is the time and production, it will be, the graph would be like this, right? It will ever and ever increase. But there are limitations to it, and those limitations were factored in, those were challenged, and improvement was done by the human relations approach. Human relations approach addressed to the gaps that were in the scientific school of thought, right? They added into it. So human relations theory focuses on individual needs and behavior of individual in groups, right? So there are some things which is more than just machines and tools and training methods. There are individuals who are very different from one another, number one, and whenever they are working in the group, they have different identity because the group dynamics impact the individual as well, right? Those things were not effectively studied by the scientific management school of thought. They were more focused on increasing efficiency, effectiveness by means of tools, by means of bringing in training, standard, one best way. Though the scholar Mary Parker Follett definitely was ahead of her time, because she talked about industrial groups. She talked about how to have coordination, how to have how to use power, how to understand the situational theory of power, of leadership. Definitely she was studying the industrial group. Over here also there is a study of human beings under the industrial setup, but definitely over here it is a discovery of a social man from the economic man,
So what is economic man theory? Economic man theory is giving monetary, physiological incentive to a man, and he or she would be better worker. That is economic man, who is driven by the concept of effectiveness, efficiency, and economy. But the social man is driven by the thought process of social dynamics, social order, the group, individual, interpersonal relationship, all these things, right? So it takes interpersonal approach to managing human beings, right? Whatever communication is happening in between two people or in the group, in the hierarchy, or vertically or horizontally, right? It present organization is made up of formal and informal elements. So formal elements are basically the structures. Formal elements are structures. So if I say what is a formal element in the bureaucracy, so in the bureaucracy, in Indian bureaucracy, if I talk, so these offices in the words of Weber, specialization, sphere of competence. So can anybody recall what was sphere of competence when we talked about Weber? Can you recall it? What was sphere of competence? Himani, Prakhar, Kaniz, Anuj. Anybody can recall it? Sphere of competence. और मैंने इसमें एग्जाम्पल भी दिया है आपको और बताया था ऐसे 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 करके. No? Okay. Okay. So I said that you are bounded by the area or specialization that you have been given. So I said the SDM cannot do a work of DSP. He cannot, SDM posted in one tehsil cannot go into another tehsil and go and do an inquiry of something. So goes with the IPS officer of one place, right? Can you remember it? So everybody have defined duties, that is fixed criteria. Yes, specialization, competence is fixed. Sphere है, उसके बाहर नहीं जाना है. ठीक है, specialization की बात हो रही है. So these were the things, these structure, these are the structural aspect, right? So जब भी हम bureaucracy की बात करेंगे और जैसे कहा जाता है more governance, less government, right? More governance, less government. So जो government है ना, this is all about structures of the bureaucracy. Number of offices, number of cars, number of officers, इतने secretary हैं, इतने under secretary हैं, इतने deputy secretary हैं, all those places, all those things, right? So this is government. And when we talk about governance, that is beyond all these things. तो process हो जाता है वो, ठीक है? खैर, ठीक है, वो मैंने आपको इंडियन ब्यूरोक्रेसी से लिंक बताया अभी. सो स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है, ऑफिसेज, स्पेशलाइजेशन, स्फीयर ऑफ कॉम्पिटेंस, सेग्रीगेशन ऑफ पर्सनल एंड प्राइवेट स्पेस, ठीक है, मेरिट बेस्ड, सीनियरिटी बेस्ड, ऑल दीज थिंग्स आर स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चरल थिंग. द इनफॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन which include interaction between individual. So anywhere in the world, right? And if you see whatever is happening in today's era in the big firms, what they are doing, they are bringing the new work culture. For an example, I was reading about how the people who are working in the headquarters of Facebook, Twitter, or Google, what kind of environment they get while they work. So that is a very, I would say, outrageous, if I would say, as I would compare anybody who is working in India. For an example, in Google, in Facebook, in Twitter, in the head offices, you have gym, you have spa, you can take your pet over there, and there is also restroom, you can sleep and you can pray also, right? That is not something that we can imagine in a developing country like India or majority of the workplace, because those are very formal. But the organization which understand that team building or group dynamics is very important, they are focusing on them. Fine. And this focus was way back proved and suggested by the great human relation theorist Elton Mayo, right? So they are more concerned how do group people interact with each other,
how do they form groups. So informalism is more about how do whatever is your personal connection at a workplace, that become informal organization, right? Beyond work, if you are able to connect, जैसे अगर क्या होता है कि धीरे धीरे फॉर एन एग्जांपल वी स्टार्ट वर्किंग एनीवेयर, सो ऑन द फर्स्ट डे वी आर वेरी कंसर्न्ड विद नियम कानून क्या है भाई, ठीक है, what are the rules, what are the regulation, where you have to sit, where you have to come and do whatever, right, what is your duties. Then slowly you tend to have relationship with other people, you become friend of them, and slowly you feel part of the pack, you feel you are a team. And when in a team you perform good, you do not want to leave that place because now you have friends over there. And also the structure is same, but something else has also developed, that you have developed human relations, right? This is what it is. Okay, so in this way organization is टाइप क्या है, सोशल सर्कल भी है, सोशल स्फेयर भी है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है. So organization is also social organization, it is a social sphere, it is a social relationships which are also working out there. So this is the human relation movement was focusing on, right? So you see, this should be managed, this system should be managed to create individual job satisfaction or resultant motivation of the individuals, ठीक. तो यहां पर जो सोशल इंटरेक्शन और सोशल सिस्टम बन रहा है, सोशल ऑर्डर बन रहा है, उसको मैनेज कैसे कर लेती हैं कोई फॉर्म्स और कोई नहीं कर पाती हैं, दैट इज द डिफरेंस. सो इट इज अ नेसेसिटी of organization to be good at managing the social interaction, individual interpersonal interactions at the workplace. Okay, much emphasis is now placed on individual interaction within the group and group behavior and performance. So these studies were able to prove that it is not only the concern of monetary aspects or physiographic rest, और AC चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है, लाइट कितनी जल रही है अभी हम देखेंगे, ठीक है, एंड उसका भी इंपैक्ट होता है. बट देयर इज समथिंग एल्स व्हिच वाज डिस्कवर्ड, व्हिच इज हाउ डू पीपल वर्क इन ग्रुप. सो इट एक्नॉलेजेस, ये मानता है कि पीपल्स का परसेप्शन, एटीट्यूड एंड एक्सपेक्टेशन प्ले अ क्रिटिकल रोल इन वर्कप्लेस परफॉर्मेंस. सो if somebody is not treating me well, if somebody's boss is not treating them well, and then boss one day calls, there is growing frustration in them, and the boss calls one day, okay, see, whatever I have said, that is out of anger and I don't mean it, you are valuable employee, but I want this thing to improve, and let's have a coffee, let's have a walk, right? So your whole perception would change about your boss and about the organization. You will say, okay, I may have done some small mistakes, but ultimately it is my boss is a good man or a good businesswoman, and I need to work, I need to give my best for him because he has put his or her idea in my hands and his or her faith. Okay, so Elton Mayo was Australian psychologist, and he studied in Harvard University. He developed this human relations, one of the most important proponent of human relations theory, right? He conducted series of experiments which are now known as Hawthorne studies or Hawthorne experiment. तो Hawthorne कंपनी में वो गए और वहां पर सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए उन्होंने, राइट? एंड ही कंक्लूजन क्या है, दैट पीपल हैव यूनिक प्रेफरेंसेस, not everybody is motivated by only money, not everybody is motivated by only physiological things. Physiological, it means what kind of temperature you have, whether you have swanky TV screens, whether you have 5,000 rupees ka chair on which you are sitting, ठीक है? And they also can't be treated as machine. They can't be treated as machines, as the proponent of scientific school of management was saying, that there is a one best way, and if you apply those best ways, जैसे लूथर गुलिक एंड लिंडन उर्विक ने कहा, पोस्ट कॉर्ब, ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, देन बजटिंग, ठीक है, कोऑर्डिनेशन, all these things, right? If you are able to put in those things, it will be all right?
then Fayol is also saying 14 principles hai and they are universally applicable. But over here they are saying they do not want to be treated as machine, and they have unique preferences, and these need to be studied with psychology, with sociology, right? So Elton Mayo in his studies concentrated on fatigue, मतलब थकान, accidents, production level, rest period, मतलब थक गए हैं तो थोड़ा 10 मिनट के लिए आराम कर लो, working conditions, etc. on industrial workers in factories, right? His two among many important research were, वैसे तो उन्होंने he has done series of researches, but his two very important work were, number one, research in textile mill near Philadelphia, it is in US, and research in Western Electric Company, Chicago में, उसको ही Hathron studies बोला गया, right? So these are the two very impactful things that studies he carried. Okay, so there was, let us go into, dwell into the first thing, that was textile mill, Philadelphia. Okay, so there was a textile mill, and ये textile mill क्या थी? ये model organization थी. यहाँ पर सब कोई काम करना चाहता था. Overall the production and the working of the workers were very good. There was no problem in overall of the company. ठीक है? And it was very well organized, and the workers and the management were highly enlightened and were humane in their behavior, were very upright. They never had any kind of strikes over there. ठीक है? But there was one section. अब देखो क्या होता है कि within the organization spinning mill है, ये textiles की mill है, ठीक है? textile की mill है. So there are many of the sections. जैसे फाइबर से यार्न बनता है, फाइबर से यार्न मतलब धागा बनता है, धागे को लपेटा जाता है, स्पिंडल बनते हैं, ठीक है? और फिर वहां से आपका फैब्रिक बनता है, कपड़ा बन जाता है, ठीक है? और कपड़े पे रंगाई पुताई हो जाती है, तो ऐसे ही निकलता है. तो अलग अलग विभाग होते हैं, राइट? सो ओवरऑल दिस टेक्सटाइल कंपनी वाज वेरी मच फाइन, बट देयर वाज अ प्रॉब्लम. द लेबर पर्सनल फेस प्रॉब्लम इन म्यूल स्पिनिंग डिपार्टमेंट ऑफ द मिल. सो क्या है? स्पिनिंग हो रही है. म्यूल स्पिनिंग क्या होती है कि धागा बनाया जाना, ठीक है? स्पिनिंग, और उससे फैब्रिक बनता है. यहां पर दिक्कत आ रही थी. वैसे तो दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज अ मॉडल ऑर्गेनाइजेशन, एवरीबडी वांटेड टू वर्क ओवर देयर, एंड द एट्रिशन रेट और टर्न ऑफ रेशियो, मतलब कितने लोग एक साल में आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, ठीक है? और कितने लोग रिजाइन दे रहे हैं. कंपनी का ज्यादा नहीं था, पर एक जगह था. इश्यूज वेयर that company was hiring 250% more workers than actual requirement, because everybody was leaving in 15 days, 10 days. So अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो कंपनी एक साल में 120 लोगों को हायर कर सकती है, ये सोच के कि भाई 20 लोग बीच बीच में छूट जाएंगे. पर उसको 250% ज्यादा लोगों को एटलीस्ट इन दिस विभाग ओनली दे हैव टू हायर, राइट? So absenteeism among the workers was the main issue, कि बहुत लोग एब्सेंट होते थे, आते नहीं थे और चले जाते थे बार बार. Attrition rate was very high. Management, जो local management था, they tried whatever they had under their umbrella, they tried everything, right? They tried to give them incentive, they tried to study, but things were not working. So management also consented in efficiency engineers, several financial incentives were introduced, number of schemes were launched, but ये yielded no appreciable results. So there were some of the things that were being done by internal management of the company, but those things were not yielding any result, right? So there was again an issue कि अब क्या करें. So now comes the study which was done under the Elton Mayo. So Mayo was consulted to study the problem of मल्टी स्पिनिंग डिपार्टमेंट ऑफ द मिल, ठीक है? जहां पर म्यूल स्पिनिंग है, जहां पर धागा बन रहा है. अब ये म्यूल स्पिनिंग कैसी होती है कि यहां पर अगर आपने ऐसे होता है कि यहां पर दिस इज वॉकिंग एरिया, और यहां पर बहुत सारी ऐसे मशीन है लगी हुई, और यहां से रुई है या कुछ है, और ये मशीन ऐसे 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 मूव कर रही है, और ये इससे क्या बना रही है? धागा बना रही है. अभी ये क्या होता है, ये जो धागा बनाती है ना, यहां पर ये धागे टूटते रहते हैं.
तो somebody has to go over there and join, ठीक है, somebody has to go over there, and this was a long alley. This was a long alley, 30-40 मीटर का लॉन्ग एरिया था जहां पर ऐसी बहुत सारी मशीन्स लगी हुई थी, ठीक है. सो मेयो ने ऑब्जर्वेशन किया, ही स्टडीड द प्रॉब्लम इंटेंसली फ्रॉम वेरियस एंगल्स. फिजिकली देखा, सोशल देखा, साइकोलॉजिकल देखा. फिजिकली देखा कि वहां पर वर्किंग कंडीशंस ठीक है नहीं, टेम्परेचर सही है नहीं, वाटर सप्लाई है या नहीं, ठीक है. साइकोलॉजिकल देखा कि वेदर द टॉप मैनेजमेंट इज टू डोमिनेटिंग or whether there are a lot of problems with the workers in terms of their rest hours or other things, right. ये सब उन्होंने स्टडी किया और देखा, he found that almost every piercer, मतलब जो धागा जोड़ने वाला होता है, ठीक है, वर्किंग इन द म्यूल स्पिनिंग डिपार्टमेंट सफर्ड फ्रॉम फुट ट्रबल. क्योंकि उनके पास इमीडिएट रेमेडी नहीं थी. ये फुट ट्रबल क्यों हो रहा था कि जो भी धागा जोड़ने वाला होता था, अब ये मशीन तो चल रही है इंजन से बहुत तेजी से, यहां पर कम लोग थे जो धागा जोड़ने का काम जानते थे, ठीक है. एवरी पियर्सर हैड टू वॉक डाउन द एले 30-40 मीटर, 30 यार्ड और मोर, ऑन ईदर साइड ऑफ विच द मशीन हेड वाज ऑपरेटिंग. या तो इधर का टूटा या इधर का टूटा, ऐसे जाके घूम के जाना पड़ता था, ठीक है. और यहां पर कॉटन थ्रेड बन रहे थे, यहां पर जाना पड़ता था. तो a single worker has to cater to 10 से 15, 10 से 14 total number of such piercing centers, machines, ठीक है. तो इसकी वजह से क्या हो गया था, इनको बहुत miserable felt होता था. they were like tired like anything, they have to walk along, ठीक है, they have to keep track कि अच्छा अब यहाँ का टूट गया, वहां कर रहे हैं, and it constant sound is coming, ठीक है, constant sound is coming. So there was a lot of stress also and physical fatigue also, ठीक है. So such machines, due to which they felt miserable attending on the job, they felt very tired, they felt कि यार कहाँ फंस गए हैं हम, ठीक है, इतना चलना पड़ता है और थकान है. And he observed that many people were like walking like very tired, limping as well, and they have a foot problem. Most of the people were complaining कि हमारे पैरों में दर्द होता है, ठीक है. They have to stand, they have to walk, they were near the sound of machines. Workers were अभी ये देखा, ये तो उनके फिजियोलॉजिकल कंडीशन में देखा. फिजिकल कंडीशन में देखा तो ये पाया, क्या पाया कि भाई यहां पर तो बहुत चलना पड़ता है, बार बार मशीन टूट जाती है, और वहां पर मशीन में जो धागा जोड़ने का काम करते हैं वो तो कुछ ही लोग हैं, और ये कुछ ही लोगों को सारा क्या कर दिया है, इन पे लाद दिया है, ठीक है. सो अभी एक और प्रॉब्लम थी, वो ये प्रॉब्लम थी कि देयर वाज वर्कर्स वर अफ्रेड ऑफ द प्रेसिडेंट. Now this person was very tough person. This person was a tough kind of a guy, ठीक है, colonel in the army, and he has worked in, he has fought many wars in world wars. So he has a very tough demeanor, tough personality. तो लोग इसके पास कोई भी शिकायत लेके नहीं आते थे, ठीक है, और प्रोटेस्ट भी नहीं करते थे. So now nobody is approaching him, nobody is protesting, nobody is saying anything, because सबको लगता था कि नहीं यार ये फौजी है and he will shoot down any of the request we will give. He will not be very well spoken, he is tough guy, ये तो ऐसा ही है, ठीक है, हम नहीं जा रहे इसके पास, ठीक है, because he thinks that everybody can be very tough guy like him. So they were afraid to approach the president because he was a colonel. So the workers would never protest, never say anything. So ये क्या था, उनमें अंदर बहुत पेंट अप इमोशंस थे. सो बेसिकली क्या है कि साइकोलॉजिकली अगर फर्म्स में क्या होता है, बेसिकली जो बहुत अच्छी फर्म्स होती हैं, ठीक है, दे गो फॉर, अभी आपके एचआर प्रैक्टिसेस जब देखेंगे आप अपने यूपीएससी में भी, सो ये सब वहां ट्रेनिंग में भी होता है. तो पीपल आर सेंड टू वेरियस ट्रैक्स, सम लाइक टाटा एंड महिंद्रा, दीज काइंड ऑफ कंपनीज send their employees on external working environment where they don't have to work, but rather they are engaged in some adventure games. कोई फ्लाइंग के लिए जा रहा है, कोई बलून से कूद रहा है, कोई बंजी जंपिंग कर रहा है, ऐसी चीज करते हैं, ठीक है. सो वो ऐसा बिलीव करते हैं कि जिससे पेंट अप जो इमोशंस है वो रिलीज होते हैं. यहां पर ऐसा कुछ था नहीं पेंट अप रिलीज के लिए, ठीक है. तो क्या हुआ कि मेयो ने इन चीजों को पढ़ा, इन चीजों को देखा, तो मेयो ने फिर एक काम किया कि इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्ट पीरियड, उसने कहा भैया रेस्ट दो,
क्या कहा, ही इंट्रोड्यूस 2 रेस्ट पीरियड्स ऑफ 10 मिनट्स के मॉर्निंग में 1-2 घंटे के बाद एंड अगेन इन आफ्टरनून विद ईच टीम ऑफ पियर्सर्स। ठीक है, तो उसने कहा कि सबको रेस्ट दो। अब सबको रेस्ट मिलने लगा। ठीक है, इससे क्या हुआ रिजल्ट, फिजिकल जो टायरिंग थी वो तो कम हो गई, प्रोडक्शन भी इंक्रीज होना शुरू हो गया। अब प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, फिजिकल टायरिंग सबसे पहले इंक्रीज होगी तो लोगेगा ओके यार कि आई एम नॉट फिजिकली टायर्ड, और फिजिकली टायर्डनेस कम हो गई तो आई कैन ऑल्सो फोकस ऑन अदर थिंग्स, आई कैन फीड माई सेल्फ बेटर, आई कैन बिहेव विद अदर्स इन अ बेटर वे, आई वुड बी लेस फ्रस्ट्रेटेड, सो माई मोरल मोटिवेशन वुड ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, तो फिर उससे क्या हुआ, लेबर टर्नओवर का मतलब एट्रिशन, जो रिजाइन लोग कर रहे थे और एब्सेंटिज्म था, रिजाइन कर करके जा रहे थे, वो क्या हो गया, कम हो गया, ऑलमोस्ट केम टू एंड। सो यहां पर तो ये फिजिकल लाभ देने से क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, ये तो प्रूफ हो रहा है यहां पर। ठीक है, पर इसके पीछे की भी और भी चीज थी, ये तो साइंटिफिक मेथड से भी हो रहा था प्रूफ कि लोगों को अगर फिजिकली बेटर ट्रेनिंग दी जाए और मोटिवेशन कुछ हो तो ठीक हो जाएगा, बट यहां पर कुछ ग्रुप डायनेमिक्स तो अभी काम नहीं कर रही है, पर अभी हमें पता चलेगी क्यों। तो नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ अर्न बोनस स्कीम। ओके, इन्होंने कहा कि अर्न करो और बोनस स्कीम लाए। अंडर दिस स्कीम इफ वर्कर्स वर टू प्रोड्यूस मोर देन सर्टेन परसेंटेज दे वुड अर्न बोनस। सो ऐसे ही जैसे पीस रेट सिस्टम बनाया था, किसने बनाया था पीस रेट सिस्टम, बताओ, नहीं पता? साइंटिफिक मैनेजमेंट एफडब्ल्यू टेलर कह रहा था ना कि टाइम स्टडी करा लूंगा, मोशन स्टडी करा लूंगा, वर्क स्टडी करा लूंगा, और एक ऑप्टिमम लेवल पे जो काम करते हैं अगर उनसे ज्यादा करोगे तो तुम्हें बोनस मिलेगा। ऐसा ही कुछ इन्होंने करने की कोशिश करी, क्योंकि ये भी क्या हो रहे थे, नई थ्योरी को डिस्कवर कर रहे थे अभी। ठीक है, उनको पता नहीं था कि क्या मैं डिस्कवर कर दूंगा, तो अभी तो आ रहे थे ये भी साइंटिफिक मैनेजमेंट टाइप के थॉट से, पर इन्होंने इसको जब पढ़ा तो पता चला कि नहीं भाई यहाँ तो कुछ अलग चीजें हो रही हैं। ठीक है, ओके, so he introduced earn bonus scheme, and anybody, if there is this level of production and anybody who is doing this level of production, so they would get bonus। एक ये इंट्रोडक्शन किया, पहला इंट्रोडक्शन था कि फिजिकल जो फटीग थी, जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हो रही थी, उसमें क्या मिल गया, रेस्ट पीरियड मिल गया। ठीक है, और यहां पर बोनस। ठीक है, तो 2 स्कीम्स वर मेड वर्कर्स हैप्पी। अब क्या होने लगे, लोग हैप्पी होने लगे। ठीक है, पर यहां पर लोगों में हैप्पीनेस आ गई, उनको लगा कि ओके हमारे साथ क्या है, बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं, नाउ मैनेजमेंट इज टेकिंग केयर ऑफ अस एंड वी हैव रेस्ट पीरियड, दे वर नॉट कंप्लेनिंग। ठीक है, और बेसिकली ये भी था कि ये भी पता चला कि रेस्ट पीरियड से उनको फिजिकली तो ज्यादा नहीं, उनको तो फिजिकली तो थोड़ा हेल्प थी, पर एक्चुअली उनका बिहेवियर अपने घर की तरफ भी क्या हो गया, सही हो गया। सो व्हेनेवर दे वेंट टू देयर होम, they also interacted with their home members, family, wife, mother, father, whatever, in a better way, and people at home also saw that there is a change in their attitude, and it also make their morale up, and it also positively impacted them. So soon क्या हुआ, एक और प्रॉब्लम आने लगी। अब वर्कर्स तो वेरी हैप्पी, दे वर वेरी हैप्पी एंड प्रोडक्शन वाज आल्सो गुड, एट्रिशन भी कम हो गया, लेबर टर्नओवर कम हो गया, नाउ थिंग्स आर प्रीटी सेटल्ड आउट। बट अगेन एक और प्रॉब्लम आ गई। अब दूसरी नई प्रॉब्लम का क्या नाम है, नई प्रॉब्लम का ये नाम है कि दीज न्यू स्कीम्स फेस प्रॉब्लम एज सुपरवाइजर वर नॉट अंडर दीज 2 स्कीम्स, दे नेवर लाइक्ड पीपल। सो अब इमेजिन करो, यू डू रिमेंबर कि अभी ये जो समय है, that is the same time when there was, this was happening in 1920s only, right? And this was the time which was the time of principles of scientific management, right? So everybody was thinking on the same terms, that give them training, give them more incentive, they will work better. So this was introduced, but something else happened। अब क्या हुआ, वहां पर सुपरवाइजर काम कर रहे हैं और वो देख रहे हैं, अरे वाह यार ये तो 10 मिनट सो रहा है आदमी और मुझे तो काम करना पड़ रहा है अभी भी। सुपरवाइजर्स को तो ये मिला नहीं था, इट वाज ओनली फॉर द वर्कर्स।
and that piercers basically who are walking up and down और उनको धागों को सही कर रहे थे, right? So these people were despise this, they didn't like it, they didn't like, so उन्होंने कहा वो नाराज हो गए, ठीक है। फिर नाराज हो गए तो फिर ये कहा गया कि ठीक है चलो अगर ये नाराज हो रहे हैं तो फिर कहा गया कि therefore they suggested that workers should earn the rest period. This new system was launched. अब एक तो ये रेस्ट पीरियड सबको दे दिया गया, ठीक है, सारे के सारे लोगों को दे दिया गया, ये हुआ था, ठीक है, बाद में। पर अभी ये कहा कि इनको अर्न करना पड़ेगा। सो विद इन अ वीक प्रोडक्शन फेल, नीचे आने लगा, ठीक है। वर्कर बिकेम अनहैप्पी एंड इन्होंने द ओल्ड सिस्टम स्टार्ट टू रीअपियरिंग। सो यहां पर फिर से वो दिक्कत आने लगी, इसको खत्म भी करा जाने लगा, रेस्ट के लिए भी वो कहने लगे हम तो नहीं देना चाहते इन्हें रेस्ट। फिर आगे क्या हुआ? सो द कंपनी प्रेसिडेंट लुक्ड इनटू द प्रॉब्लम, और फिर कंपनी के प्रेसिडेंट ने मेयो से फिर बात करी और उन्होंने ऑर्डर किया कि भाई अब एक जगह आपने क्या करना है कि सारे के सारे कंपनी को बंद कर देना है कि द स्पिनिंग डिपार्टमेंट शुड बी शट डाउन फॉर 10 मिनट्स 4 times a day and all hands from the superior down to the workers should enjoy the rest period. अभी रेस्ट पीरियड पे इशू हुआ, रेस्ट पीरियड को चेंज कर दिया गया, उससे लोगों को लगा रहे यार हमारे तो जो था वो भी छिन गया, ठीक है। पर फिर सुपरवाइजर्स को भी मनाया गया और कहा गया कि नो, सो एवरीबडी हैज टू बी गिवन द रेस्ट पीरियड एंड whole of the organization would be what closed for certain time. Now people had for 10 minutes the organization was being shut down for 4 times a day. अब ये कहने पे एल्टन मायो ने कहा दोबारा से इसको कुछ करते हैं, ठीक है। और इन्होंने कहा कि अब तुम्हें कंट्रोल भी रेस्ट पीरियड का हैंड्स ऑफ वर्कर्स में दे दिया कि भैया आप लोग क्या करो खुद डिसाइड कर लो, कब लिख लो, एक आगे का शेड्यूल बना लो, रोस्टर बना लो इस वीक के लिए कि कब तुम्हें रेस्ट पीरियड चाहिए और कब तुम्हें रेस्ट पीरियड नहीं चाहिए, ठीक है। अपने आप यू आर द ओनर ऑफ योर ओन रेस्ट पीरियड एंड एवरीबडी इज एंटाइटल्ड टू रेस्ट पीरियड, ठीक है। सो अब यहां पर एक सेंस ऑफ ग्रुप फीलिंग भी आ रही है, ओनरशिप भी आ रही है वर्कर्स में, ठीक है। तो ओल्ड प्रॉब्लम अब क्या हो गई, डिसअपियर हो गई, प्रोडक्शन फिर से बढ़ने लग गया, सुपीरियर जो सुपरवाइजर थे, सुपरवाइजर एंड जो वर्कर्स के बीच का जो टेंशन था वो टेंशन भी डाउन हो गया, बिकॉज नाउ सुपरवाइजर्स all were also having these rest periods, so they were also happy, everybody was happy, ठीक है। और workers started earning bonus also, they also started working more than as there was a one base level of work, उससे भी ज्यादा करने लगे और workers started earning bonus as well, so it was a good time for everybody, right? Now यहां पर कंक्लूजन निकाले गए कि कंक्लूजन क्या है इस स्टडीज से, इस स्टडीज के कुछ कंक्लूजन है और उनको निकाला गया। अभी वो कंक्लूजन क्या है? अभी वो कंक्लूजन ये है कि स्पिनिंग प्रोड्यूसेस, कुछ फिजिकल फैक्टर्स भी थे और कुछ उसमें जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हुए, सोशियोलॉजिकल इंपैक्ट भी हुआ इस चीज का। तो ये कहा गया कि स्पिनिंग से पोस्चुरल फटीग होता है and that induces absenteeism and passivity. तो जब भी स्पिनिंग डिपार्टमेंट में कोई भी व्यक्ति लगातार धागे को ऐसे जोड़ रहा है and his back is bent, so naturally क्या है, and somebody is walking down the alley which is 30 yards long and one person has to cater to 10 to 14 machines and he has to work for long hours, so there is a physical fatigue in people. fatigue का मतलब है बहुत थकान हो जाती है एंड इसकी वजह से पैसिविटी आ जाती है, लोग पीपल डू नॉट वांट टू कम ऑन टू द वर्क एंड देयर इज दिस एब्सेंटिज्म, पीपल से बहाने बनाने लगते हैं और एट्रिशन रेट बढ़ जाता है, लेबर टर्न ओवर बढ़ जाता है। दैट इज व्हाई दे हैव टू हैव 250% मोर रिक्रूटमेंट एज फ्रॉम द डिजायर्ड लेवल, राइट। और जगह तो ये था नहीं। फिर रेस्ट पीरियड आने से क्या हुआ, क्यों वर्कर्स अब बोनस भी लेने लगे और ठीक करने लगे? पोस्चरल फटीग रिलीव हो गई, एब्सेंटिज्म भी कम आ गई, पैसिविटी भी कम आ गई। रेस्ट पीरियड आर मोर इफेक्टिव व्हेन दे आर रेगुलर। अगर 4-4 रेस्ट पीरियड मिलने लगे और हर एक रोज
हर एक 2-2 घंटे पे रेस्ट पीरियड मिलने लगे तो वो ज्यादा अच्छा है, ऐसा भी कंक्लूजन निकला। और सबसे इंपॉर्टेंट ये था, ठीक है, कि लाइफ ऑफ द वर्कर आउटसाइड द मिल्स हैज इंप्रूव्ड as worker become more interested in their family and become more sober. So whatever earlier workers were having trouble, they were working for long hours, their supervisors also were working, and these people were not having any rest hours. They have physical fatigue, there was mental stress also, they have to cater to large number of machines. Now they got rest, and by resting their physical problems were sorted out. Whenever they were going back to their homes, people were, now these people were enjoying, rather than being cribbing or crying, whining about the whatever bad is at work, rather they were enjoying now, right? So prevailing problem in the mill was not of result of working condition, but the result of emotional response to the workers, of workers to the work performed. तो ये भी निकल के आया कि यहां पर जो असली कारण था वो ये नहीं था कि वर्किंग कंडीशन खराब थी, पर वर्किंग कंडीशन को सोच सोच के जो वर्कर सोच रहे थे वो खराब हो गया था, कि टफ जॉब है, रोज यही करना पड़ता है, ऐसे वाला एटीट्यूड आ गया था, ठीक है। सो इमोशनल रिस्पॉन्स टू द वर्क वाज नॉट वेरी गुड, ठीक है, ऑफ द वर्कर्स. सो देयर वाज मोनोटनी, but was not a problem, but a repeated work done under condition of isolation. So monotony क्या होती है? What is monotony? Any idea? Monotony क्या होता है? Doing same work again and again. Good. Yes. Mono मतलब एक, ठीक है, monotonous या monotony. So whenever somebody does one work again and again, तो क्या होता है, एक सेंस ऑफ लेथार्जी आने लगती है, ठीक है, वही मोनोटनी है. तो इन्होंने कहा कि मोनोटनी इसलिए नहीं हो रही थी कि वर्क से प्रॉब्लम थी, इसलिए हो रही थी कि वर्क से रिलेटेड जो फिजिकल फटीग हो रहा था उसकी वजह से दे वर नॉट एबल टू हैव गुड रिलेशनशिप एट होम आल्सो. So there was sense of isolation, there was sense of isolation at work and sense of isolation at home also, and this rest hours and bonus earning, everything improved that, right? So these are the conclusion that we came across from the textile mill at Philadelphia. So these were the basic things that first of his experiment was able to do in the mule spinning department, right? So it is, this thing is applicable, ये जो चीज है जैसे आपने कल पढ़ा था, this is very applicable to our own lives also, right? So wherever there is condition of confrontation, there is conflict. So you can always think over what Mary Parker Follett has said. And whenever, this is very applicable to bureaucracy as well. So bureaucracy is a kind of in India, bureaucratic setup is a kind of grinding machine where you have to do same thing on daily basis, right? वही लोगों की समस्या सुन ली, वही FIR नहीं दर्ज हुई, साहब हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया, फ्लड आ गई, ठीक है, it is monotonous. But there are some of the studies that have been taken over by the bureaucracy as well seriously, and now evolution of new type of organization is also happening, right? Okay, now coming on to Hawthorne studies. Okay, so एल्टन मेयो ने जो स्टडीज करी वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी शिकागो में, उनको हैथरॉन स्टडीज बोला जाता है. और बेसिकली ये जो इनिशियली रिसर्च प्रोजेक्ट था, ये नेशनल रिसर्च काउंसिल ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस का था, ठीक है. और इसमें एल्टन मायो को बाद में बुलाया गया था, और एल्टन मायो के एसोसिएटेड जो जूनियर्स थे वो इसमें ज्यादा थे, बट अल्टीमेटली जो गाइडिंग फोर्स थे, जो फिलोसफी फ्रेंड फिलोसफर और गाइड थे, वो एल्टन मायो ही थे. और जो मेजर डिस्कवरी जो करी वो एल्टन मायो को ही जाती हैं, इसीलिए ही इज कंसिडर्ड टू बी अ फोरमोस्ट लीडर इन द ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी ऑफ सोशल ऑर्डर. एंड
of organization industries, and he is also studied in sociology also, very greatly studied. Okay, so in 20th century it was realized कि 20th century में realization शुरू हुआ कि there was a clear cut cause and effect relationship between physical work, environment, well-being and productivity of workers. So this was realization that was happening in 1920s, where every other thinker was saying कि there are some principles, and if you put on those principles, planning कर लो, organizing कर लो, और आप अपॉइंटमेंट सही करने लगो, स्टाफिंग कर लो और रिक्रूटमेंट सही करने लगो, थिंग्स विल इंप्रूव. कोऑर्डिनेशन सही कर लो, कंट्रोल सही कर लो, थिंग्स विल इंप्रूव. एंड देयर इज अ वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स. सो व्हाट इज इट? क्लियर कट कॉज बिटवीन फिजिकल वर्क, ठीक है, एनवायरमेंट और वेलबींग. अब इसके बारे में आगे कहीं नहीं सोच रहे थे. देयर वाज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन and giving condition of ventilation, temperature, lightning and other physical working condition and wage incentive. So ये भी जो बड़ी कंपनियों में या छोटी कंपनियों में wherever the managers were, they were coming from the same school of thought. ठीक है, क्योंकि फेयोल ने भी और एफडब्ल्यू टेलर ने भी, लूथर गुलिक, इन सब ने कहा था कि भैया देयर शुड बी स्टडीज ऑफ मैनेजमेंट, और स्टडीज ऑफ मैनेजमेंट में वही प्रिंसिपल पढ़ाए जा रहे थे. तो यहाँ आके वो मैनेजमेंट के जो लोग थे सेम प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे थे कि if we will condition, if physical conditions would be improved, they would be stable, so then we can have more and more production, right? So ventilation, temperature, lightning, ये सब चीजों का direct relationship है. It has been believed that improper job design, कि जॉब में अगर कोई अनफिट है, ठीक है, या किसी के अकॉर्डिंग टू नहीं है वो फिजिकल या मेंटल स्पेस के, और फटीग और अदर कंडीशन, ये मुख्य चीजें हैं. जॉब डिजाइन, फटीग और कुछ कंडीशंस रिलेटेड टू मॉनिटरी, वेज इंसेंटिव, पीस रेट सिस्टम, बोनस जो है, ये है मेन चीजें. अगर ये दिक्कत होंगी तो मेनली दे ब्लॉक द एफिशिएंसी. ठीक है, सो बेसिकली अब ये स्टडी जो करी जा रही थी वो इसको एस्टैब्लिश करने के लिए करी जा रही थी बिटवीन द मैन एंड स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, और इन्हीं को हैथरॉन स्टडीज का नाम दिया गया. ठीक है, अब क्या होता है रिसर्च में, क्या होता है बेसिकली रिसर्च में, ये होता है हमारे अंदर होता है बायस. ठीक है, हम किसी भी चीज को स्टडी करने जाते हैं तो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं. हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि हम कुछ प्रेडिक्ट करते हैं. ये कहते हैं कि ओनली इंसेंटिव वुड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी. हाइपोथेसिस 1. नंबर 2, if there would be installation of air conditioner at the floor level, ठीक है, shop floor level, याद करो एफडब्ल्यू टेलर का, then there would be better output. ठीक है, ऐसे कुछ करके इसमें सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस थी. उन सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस को चेक किया गया और उनसे ज्यादातर सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस क्या हो गई, जो assumptions माने थे, हाइपोथेसिस इज बेसिकली एन assumption, वो क्या हो गए, फेल होने लगे. तो देखते हैं अभी वो क्या हुआ उनमें. तो जब यहां पर बेसिकली ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट की हम बात कर रहे हैं, इल्यूमिनेशन ऑफ द वर्क प्लेस वॉज ऑल्सो बिलीव टू बी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सिंस इट इफेक्टेड द क्वालिटी, क्वांटिटी एंड सेफ्टी. तो साथ में आपने यहां देखा कि ये सोचा जा रहा था कि देयर इज अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन अ मैन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और वर्किंग कंडीशन, जिसमें जॉब डिजाइन है, फटीग है, अदर कंडीशंस, लाइटनिंग, टेम्परेचर, वेंटिलेशन, लाइटनिंग. ठीक है, सो इन्होंने कहा कि इन्होंने लाइटनिंग को क्यों चूज किया. इन्होंने लाइटनिंग को इसलिए चूज किया कि इनको ऐसा लगता था कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द वर्क. ठीक है, सो ये जो ग्रुप था जो बेसिकली उसको स्टडी कर रहा था, नेशनल रिसर्च काउंसिल ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, डिसाइडेड टू एग्जामिन प्रिसाइजली रिलेशनशिप बिटवीन इल्यूमिनेशन और वर्कर की एफिशिएंसी पे क्या फर्क पड़ता है. ये इनका रिसर्च प्रोग्राम था हैथरॉन प्लांट में. ठीक है, तो रिसर्च बिगेन इन 1924 एंड दिस वाज द हाई टाइम ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एवरीबॉडी वाज थिंकिंग दैट इट इज मोर ऑफ अ फिजियोलॉजिकल कंडीशंस व्हिच इफेक्ट द वर्कर्स rather than the social man or the interpersonal relations. So everybody was hell bent on to give the same medicine in different diseases also. And the medicine was that you need to improve the working condition, you need to put in some better incentive mechanism and things would improve. Okay,
सो ये सीरीज ऑफ टेस्ट किए गए थे। इसमें ग्रेट इल्यूमिनेशन को देखते हैं हम, 1924 से 1927 में शुरू होता है ये ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, राइट। सो यहां पर हमें देखने को मिलता है it was done to determine effect of different level of illumination on workers productivity। illumination को हम क्या करेंगे, और चीजों को स्टेबल रखेंगे, कंट्रोल रखेंगे, और illumination को क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे या कम करेंगे, ये करेंगे। क्योंकि illumination according to this working group was an important aspect and illumination had an impact according to them, right। so in this experiment क्या हुआ, initially two group of female workers were located in separate room, each group performing the same task। तो six गर्ल्स को एक अलग अलग रूम में रखा गया और सेम टास्क कराया जा रहा था इनसे, ठीक है। द रूम वर इक्वली इल्यूमिनेटेड विद स्टेबलाइज्ड रूम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ठीक है। स्लोली द कंडीशन ऑफ वर्क वर चेंज टू मार्क प्रोडक्शन में डिफरेंस। अभी ये देखा गया कि ये दोनों ग्रुप काम कर रहे हैं, वहां पर सेम कंडीशन रखी गई और इल्यूमिनेशन को कम ज्यादा किया गया, फिर बढ़ा दिया गया, बहुत अच्छा कर दिया गया, और उनका जो प्रोडक्शन था वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब इल्यूमिनेशन को और चीजों को कंट्रोल करते हुए इल्यूमिनेशन को कम किया गया, 4 लाइट लगी हुई थी, 3 कर दी गई, 2 कर दी गई, फिर भी वर्क प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये रिसर्चर्स वाज सरप्राइज्ड टू नोट दिस कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, कि व्हाई वी, इनका हाइपोथेसिस तो यही था ना कि इल्यूमिनेशन को कम करेंगे तो क्या होगा, कि वर्कर्स का प्रोडक्शन गिरेगा, ठीक है। पर ऐसा तो हो नहीं रहा है, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। ये ही इनके लिए क्या बन गया, एक थिंकिंग प्रोसेस बन गया। द रिसर्चर्स वर सरप्राइज्ड टू नोट दिस कि देयर इज नो फॉल एंड अबेंडन्ड द इल्यूमिनेशन थ्योरी, मैनिपुलेशन ऑफ वेज, पेमेंट, रेस्ट पीरियड, ड्यूरेशन ऑफ वर्क एटसेट्रा। उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ और हो रहा है, इन सब से चीजें नहीं हो रही है, इल्यूमिनेशन से और फिजिकल कंडीशन से चीजें नहीं हो रही है, क्योंकि इसको कम करने पे भी क्या हो रहा है, प्रोडक्शन सेम रह रहा है या बढ़ ही रहा है। प्रोडक्शन ऐसा कोई ड्रास्टिकली जितना हम चेंज कर रहे हैं नीचे नहीं आ रहा है, नेगेटिवली इंपैक्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब समथिंग इज मोर, समथिंग एल्स इज वर्किंग। 1 मिनट। यस, तो यहां पर इनिशियली क्या था, ग्रुप इंसेंटिव भी दे रखा था कि ग्रुप में काम करोगे तो क्या होगा, तुम्हें एज अ ग्रुप काम करोगे तो सबको ज्यादा पैसे मिलेंगे, और इंडिविजुअली तुम्हें ग्रुप में काम करना है, दोनों ग्रुप को, जहां पर ए और बी गर्ल्स का ग्रुप रखा गया था, ठीक है। सब्सिक्वेंटली बाद में क्या किया, इंस्टेड ऑफ ग्रुप इंसेंटिव्स इंडिविजुअल पीस रेट वाज इंट्रोड्यूस्ड। पीस रेट सिस्टम बना दिया गया कि कौन जितना कोई काम करेगा, एक एवरेज ये है, इससे काम करोगे तो बोनस मिलेगा और नहीं मिलेगा, ठीक है। ऑल दीज चेंजेस लेड टू राइज इन प्रोडक्शन। इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दिया, और रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स, टोटल वर्क टाइम इन अ वीक, प्रोविजन ऑफ रिफ्रेशमेंट लाइक कॉफी, सूप yielded a further rise in output, ठीक है। अभी ये देखा गया कि हमने इल्यूमिनेशन पे काम करना शुरू किया था, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर कुछ चीजें देखी गई कि हमने अगर पीस रेट सिस्टम लगा दिया तब भी बढ़ रहा है, और ये और अच्छी चीजें करने की कोशिश करी गई कि रेस्ट आवर्स बढ़ा दिए तब भी बढ़ रहा है, और ये लगभग 1 से 1.5 साल तक चलता रहा, ठीक है। और इससे ये निकल के आया कि भाई इल्यूमिनेशन से अकेले कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इल्यूमिनेशन हमने बढ़ा के देख लिया, घटा के देख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर हमने इल्यूमिनेशन को भी हटा दिया, ग्रुप मेथड लगा दिया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं हो रहा है इनके जो आउटपुट है। इल्यूमिनेशन अगर इतना महत्वपूर्ण होता और उसको कम करने से क्या होता, कम होता, बल्कि इन्होंने कुछ और चीजें करी, जैसे रिफ्रेशमेंट, रेस्ट दिया, कॉफी दी, ये सब दिया, तो भी क्या बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो इनका ये कंक्लूजन आया कि भाई इट इज नॉट ओनली द इल्यूमिनेशन विच इज वर्किंग, ठीक है, देयर इज। हाँ कनीज बताओ। Sir, their illumination means group or anything else? जी क्या चीज, ग्रोथ? Sir, their illumination means group working. इल्यूमिनेशन का मतलब होता है लाइट।
सॉरी सर। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं आपको। इल्यूमिनेट करने, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देता हूं। तो इनका ये मानना था कि, दोबारा बता देता हूं, देखो, इनका ये मानना था कि फिजिकल कंडीशन में डायरेक्टली एक रिलेशन होता है, और इल्यूमिनेशन जो है, इल्यूमिनेशन का मतलब जैसे ये लाइट जल रही है, ये लाइट जल रही है, तो अगर तुम्हें बहुत अच्छी लिट इन्वायरमेंट में बैठाया जाए, ठीक है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये अब आप कह सकते हैं अरे सर कि एसी का ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है, वो अमेरिका है, और वो जो नेशनल एकेडमी थी, वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो इल्यूमिनेशन को ही रिसर्चर्स का अपना एक रोल था कि शायद इल्यूमिनेशन भी क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। तो ठीक है, तो इट इज बेसिकली लाइट को कम करो, ज्यादा करो, अंधेरे में काम कराओ, तब भी क्या हो रहा है, कोई ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आ रहा है। 10 लाइटें जल रही है, अभी 6 लाइटें जला दी, तब भी कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव। इसके अलावा चाय कॉफी वगैरह दे रहे हैं, सेम कंडीशन है इल्यूमिनेशन की, बाद में कंट्रोल कर लिया, चाय कॉफी दे रहे हैं तो बढ़ रहा है, कम इल्यूमिनेशन पे भी प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि इसका मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन तो है नहीं इल्यूमिनेशन में, लाइटनिंग में, और कितनी ट्यूबलाइट या बल्ब जल रही है और प्रोडक्शन में, ये था बेसिकली, ठीक है। तो अब उन्होंने ये किया कि इन्होंने 1.5 साल तक, जैसे यहां पर दिखाई दे रहा है ये, आफ्टर 1.5 ईयर इट वाज कंक्लूडेड कि इल्यूमिनेशन डज नॉट इफेक्ट प्रोडक्शन ऑफ वर्कर्स। अब इन्होंने सरप्राइज हुए कि हमें तो यही बताया गया था ना जिंदगी भर कि वी आर साइंटिफिक मैनेजमेंट वाले हैं हम, तो हमें ये बताया गया था कि आप क्या करो, बेसिकली कि आप अगर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस को ऑल्टर करेंगे तो आपको चेंज दिखाई देगा। पर इनका जो मेजर चीज थी जिसपे ये बहुत विश्वास करके आए थे कि इल्यूमिनेशन को कम करेंगे, लाइटनिंग को कम करेंगे, तो प्रोडक्शन डल लगेगा और लोगों का बढ़ेगा, ठीक है, वो तो हो नहीं रहा। अब इन्होंने और जो इंसेंटिव लगाए थे, जो चाय कॉफी, ठीक है, ऐसी चीजें दे रहे थे, या और भी कुछ पॉजिटिव चीजें करी थी, उनको भी कहा कि बंद करो। Surprised by the result, the research team decided to abolish all newly introduced privileges. ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि सब कुछ बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। और जब सब कुछ बंद कर दिया कि पहले की तरह जो तुम्हें इंसेंटिव मिल रहे हैं वो भी नहीं मिलेंगे, चाय कॉफी ऐसी चीजें भी नहीं मिलेंगी, तो अब ग्रुप जो था वो कहने लगा ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। और बेसिकली फॉर अ वाइल द आउटपुट फेल, ऐसा हुआ कि थोड़े दिनों के बाद तो आउटपुट फेल होने लगा, ठीक है, पर सून इट रोज टू अ पॉइंट हायर देन एनी अदर टाइम। पर थोड़े दिनों में ऐसा हुआ कि जिस दिन से बंद किया यहां पर चल रहा था, ऐसे हुआ, पर फिर ऐसे जाने लगा, ठीक है, ये ट्रेजेक्टरी हो गई। अब ये और अचंभित हो गए कि ये हमने इंसेंटिव यहां पर बंद कर दिए, शुरू में ये ऐसे ऐसे चल रहा था, फिर ये फॉल हुआ, इंसेंटिव हमने बंद कर दिए, ठीक है, फिर भी ये ऊपर क्यों जा रहा है, थोड़े से 6-7 दिन, एक हफ्ते में ये नीचे आया, पर सेकंड, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, फिफ्थ वीक ये तो ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब तो ये और भी ज्यादा क्या होने लगा कि प्रॉब्लमेटिक होने लगा। तो राइज इन प्रोडक्शन इन स्पाइट ऑफ विड्रॉल ऑफ इंसेंटिव पजल्ड द रिसर्च टीम। अब यहां पर रिसर्च टीम को लगने लगा कि देयर इज समथिंग जो कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। फिर इन्होंने एल्टन मायो को बुलाते हैं, एल्टन मायो भी स्टडी में फिर इन्वॉल्व होते हैं, और फिर आगे क्या होता है, नए एक्सपेरिमेंट्स भी करे जाते हैं, ओके। पर यहां पर और इल्यूमिनेशन हाइपोथेसिस वाज रिजेक्टेड कि इल्यूमिनेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है टू द प्रोडक्शन, ये रिजेक्टेड हो गया। तो हाइपोथेसिस क्या है, अजम्पशन, ये अजम्पशन क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया कि ये तो है नहीं। The relationship between incentive scheme, rest period, etc. had no apparent relevance to the productive per se. ये भी कहा गया कि स्कीम रेस्ट ऊपर नीचे करने से भी कोई नीचे ज्यादा, हाँ इनको बढ़िया लग रहा है, ठीक है, और इनिशियली ये सोच रहे थे कि रेस्ट पीरियड से ही होगा, पर बाद में ये करे कि नहीं, रेस्ट पीरियड भी नहीं है, कुछ और हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ और हो रहा है जिससे कि चेंज आ रहा है। अब वो क्या चेंज आ रहा है वो देखते हैं, ठीक है। It was summarized that might be due to interest shown by the research team in the workers, ये or to the incentive wage plan, ये यहां पर आएगा, wage plan that was retained by several other privileges were withdrawn।
अब इनको ये लगा कि ऐसा कुछ हो रहा है कि ये जो ग्रुप है ये ग्रुप को चूज किया गया है, ठीक है, और ये ग्रुप को चूज किया गया है तो कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि ग्रुप डायनेमिक्स पे इट माइट बी इंटरेस्ट शोन। इससे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल में कैसे काम होता था कि सब कोई काम कर रहा है, किसी एक विशेष पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, और सबके लिए जो गैंग बॉस है, जो टाइम बॉस है, जो प्रोडक्शन इंस्पेक्टर है, वो क्या कर रहे हैं, वो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, दे आर नॉट हैविंग कॉन्वर्जेशन, और वॉट एवर कॉन्वर्जेशन दे आर हैविंग दैट इज अ वेरी स्ट्रिक्ट कॉन्वर्जेशन। तो बेसिकली ये कहा गया इट माइट बी ड्यू टू द इंटरेस्ट शोन बाय द रिसर्च टीम इन देम, कि वर्कर्स को कुछ ऐसा पॉजिटिव लग रहा है जो चेंज हो रहा है, ठीक है। ये अभी शुरू नहीं हुआ है, ये यहां पर गलती से लिख गया, यही कंटिन्यू हो रहा है, ओके, फर्स्ट वाला। सो मेयो इलेबोरेटेड दैट द रेस्ट रूम, अब मेयो को बुलाया गया, ये तो पजल थी, इसके ग्रुप के जो एसोसिएटेड मेंबर थे उन्होंने बुलाया मेयो को, मेयो ने पूरी स्टडीज को ध्यान से पढ़ा, and believe me, this was the biggest of the human experiment done on the industrial groups। आप अभी आगे देखेंगे 24,000 21,000 सैंपल्स को लेके ये क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। सो एज अ रिसर्चर लोग अपनी पीएचडी 15 20 25 50 सैंपल्स पे खत्म कर देते हैं, और यहां पर ये 21,000 सैंपल्स को देख रहे हैं। अभी यहां पर तो छोटा सैंपल था, 6 लड़कियों का ग्रुप था, तो ये तो 12 का सैंपल हुआ, कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है, 2 ही ग्रुप बनाए गए हैं। बट अल्टीमेटली और जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, यहां पर आप आगे देखेंगे, जहां पर इंटरव्यू के एक्सपेरिमेंट्स हैं गर्ल्स के साथ और वर्कर्स के साथ, दैट वाज अ बिग चेंज, राइट, एंड दैट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सपेरिमेंट एवर डन इन विद द इंडस्ट्रियल ग्रुप्स। सो दिस स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट, ठीक है। सो अभी क्या है कि मेयो इलेबोरेटेड दैट रेस्ट रूम बिकेम अ सोशल यूनिट। अब मेयो ने ये कहा कि देखो ऐसा है कि लाइट बढ़ाने से घटाने से कोई ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा ना, कि नहीं सर कोई नहीं पड़ा, इंसेंटिव बढ़ाने से घटाने से इंसेंटिव का पॉजिटिव तो इंपैक्ट पड़ा है, और अगर हटा भी दिया तब भी एकदम ड्रास्टिकली कोई चीज नीचे नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि हुआ क्या है बेसिकली, कि these girls were subjected to a conditioning which was prevailing in the system wherever they were working, they were not treated as a special beings. Over here, since these girls in the batch of 6 girls were separated and kept into 2 groups, they felt a feeling of कि we are something special and we are being treated differently, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ है, इनके बीच में एक सोशल ग्रुप बन गया है। अब ये जब आती हैं काम करने और जब जाती हैं काम करने और जब काम करती हैं, दे आर काइंड ऑफ फैमिली नाउ, ठीक है। जब ये जा रही हैं तब भी इन 6 के बीच में ही आपस में बात हो रही है, आ रही हैं तब भी इन 6 के बीच में बात हो रही है, और ये देख रही है कि इतने सारे लोग आर वर्किंग ऑन दिस, यहां पर बैठे हुए हैं हजार लोग, बट दे हैव बीन गिविंग डिफरेंट रूम, ठीक है। So because of increased attention of the research team, the unit developed a sense of participation in the project. So अब ये क्या हो रहा है कि the research team is coming and different people are coming in research team and they are observing them and they are highly qualified people, scientist type of people, and they are saying, oh my God, these people are observing us, तो बढ़िया से काम कर लेते हैं यार, ठीक है। और कह रहे हैं कि उन इमेजिनेशन के लिए कह रहा हूँ कि उन सर ने आज बोला कि वी ऑल आर वेरी गुड एट वर्क, तो हमें ये ना, अब वी डोंट हैव टू लूज आवर कॉन्फिडेंस एंड वी डोंट हैव टू लूज आवर रिस्पेक्ट दैट वी हैव गेन इन द टाइम इन द आईज ऑफ द रिसर्च टीम एज वेल, राइट। सो ऐसे करके एक सोशल यूनिट क्रिएट हो गई इनके बीच में। ये ही क्या था, एक ब्रेक थ्रू था, जिससे कि पता चला कि ओके, देयर इज समथिंग एल्स हैपनिंग बियॉन्ड द रेस्ट पीरियड, बियॉन्ड द इंसेंटिव, बियॉन्ड द इल्यूमिनेशन, बियॉन्ड द टेम्परेचर। वो क्या हो रहा है कि सोशल ग्रुप बन रहा है। Thus Mayo opened the door to research into a social man। तो उन्होंने कहा कि अभी 1920s का एरा वाज ऑल अबाउट इकोनॉमिक मैन, ठीक है। ये वर्ड याद रखना मैंने, इकोनॉमिक मैन, सोशल मैन। इकोनॉमिक मैन इज मोर कंसर्न्ड अबाउट the physiological aspect. Economic man is more concerned about economy, efficiency, effectiveness. Social man is also concerned about the group dynamics, the group, ठीक है, and his position into it,
and interpersonal relationship that he or she has where he or she works, right? So there was a opening of a social man in the concept of Elton Mayo. Okay, so Harvard group then picked up the loose thread of National Research Council studies. अब ये इल्टन मायो को बुलाया गया था, शुरू में तो ये नेशनल रिसर्च काउंसिल स्टडीज की स्टडी थी, यहां पर अब बुलाया गया। अब इन्होंने पहली जो स्टडी करी नेशनल रिसर्च काउंसिल ने, उसके जो छोड़े हुए नतीजे थे उनको हार्वर्ड ग्रुप, एल्टन मायो ने और उनके सहयोगियों ने क्या किया, पिकअप किया और and found more valuable insight into industrial man than the earlier studies। ठीक है, और उनको ज्यादा देखने को मिला कि इंडस्ट्रियल मैन और जो इकोनॉमिक मैन का जो कॉन्सेप्ट है जो पहले वाला है, और उन्होंने जो कहा वो सोशल मैन। ठीक है, जो इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं वो कैसे वहां पर सोशल थिंग्स कैसे काम कर रही हैं। ठीक है, ये चीजें उन्होंने आगे पढ़ी। तो दे प्रपोज्ड 5 हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन द फेलियर ऑफ ओरिजिनल इल्यूमिनेशन प्रोजेक्ट। अब इन्होंने 5 हाइपोथेसिस बनाई, मतलब अजम्पशन बनाए 5। ठीक है, आपस में ग्रुप बैठे, उन्होंने कहा क्या क्या हो सकता है कि 1 2 3 4 5 कि ये 5 चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अजम्पशन करते हैं क्या कि इंप्रूव मटेरियल कंडीशन एंड मेथड ऑफ वर्क लीड टू बेटर परफॉर्मेंस। इट वाज रिजेक्टेड कि क्या इन्होंने कहा कि चलो साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल को सोचते हैं कि वो इस समय क्या सोच रहे होते, उनका यही मानना होता कि मटेरियल कंडीशन को इंप्रूव कर दो, मेथड ऑफ वर्क को अच्छा कर दो, तो उससे हमेशा क्या होगा, बेटर परफॉर्मेंस होगा। पर ये तो रिजेक्टेड हो गया। अगर एफडब्ल्यू टेलर होता तो वो तो यही कहता कि मैं तो मानने को तैयार ही नहीं हूं, इसके अलावा कुछ हो सकता है, क्योंकि मेरे तो मेथड ऑफ वर्क है वो टेस्टेड है, वन बेस्ट वे है करने का, और यही मेरा कहना है, यही इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल मैन है। ठीक है, तो इल्यूमिनेशन रिजेक्ट हो गया। Okay, rest period and shorter work period leads to relief from fatigue. It was rejected. Result increase in spite of withdrawn of privileges. दूसरा था कि जैसे कि अच्छा हमने वहां पहले वाले में तो ये किया था ना कि रेस्ट पीरियड देने से लोगों को अच्छा लग रहा था, रेस्ट पीरियड दिए थे तो फटीग कम हो गया था उनका और वो घर पे भी आराम से जा सक रहे थे। तो इन्होंने कहा कि केवल रेस्ट पीरियड देने से कुछ नहीं होता, क्योंकि रेस्ट पीरियड, चाय कॉफी ये तो हमने दिए और फिर विड्रॉ भी किए, कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन रिलीफ फ्रॉम मोनोटनी टू इंक्रीज प्रोडक्शन नॉट कंक्लूसिव। इस पे भी कोई ज्यादा नहीं कर पाए कि मोनोटोनी हट जाने से किसी काम का हो सकता है क्या, क्योंकि इनका ये मानना था कि मोनोटोनी काम से नहीं आती है, उसके इमोशनल रिस्पॉन्स से आती है। ठीक है, हम क्या इमोशनली रिस्पॉन्स कर रहे हैं। जैसे जो पहला एक्सपेरिमेंट में था उसमें यही था कि मोनोटनी हो जाती है, फटीग हो जाती है, पर ऐसा नहीं है। जब मोनोटनी को रिस्पॉन्स बदल गया तो वही काम लोगों को सही लगने लग गया, जो सुपरवाइजर का रेस्ट देने की बात थी। ठीक है, तो ये भी क्या कंक्लूसिव नहीं थी, ये इसको छोड़ दिया कि नहीं ये भी नहीं हो सकती। फिर ये था कि क्या इंडिविजुअल वेज पेमेंट हैज इंक्रीज द प्रोडक्शन, और दूसरा चेंजेस इन सुपरवाइजरी टेक्निक्स हैज लेड टू मूवमेंट इन द एटीट्यूड, चेंज इन द एटीट्यूड एंड आउटपुट। अब इन्होंने क्या माना कि क्या इंडिविजुअली वेज पेमेंट देने से इंक्रीज हुआ है, या फिर कि जो चेंजेस हुए हैं सुपरवाइजरी टेक्निक्स ने, तो उसमें एक एटीट्यूड और आउटपुट में चेंज लाए हैं। ठीक है, अब ये थे इनके 2 मेथड जिनको इन्होंने फर्दर इस पे आके ये अटक गए। पहले वाले 3 को तो कहा कि ये क्लियरली तो शुरू के 2 तो है ही नहीं, तीसरा भी क्लियरली कुछ दिख नहीं रहा है, अब ये 2 बचे। इन्होंने इन 2 को फर्दर स्टडी करना चाहा। ठीक है, तो ये तो है ही कि यहां पर जो गर्ल्स ग्रुप में काम कर रही थी उनको ये लगना शुरू हो गया था कि वो स्पेशल है। ठीक है, स्पेशल का मतलब पॉजिटिव सेंस में कि वी आर बीइंग सीन डेली, पीपल आर कमिंग एंड इंटरेक्टिंग विद अस, and we are now interacting. Our supervisor is also not scolding us, because earlier he or she used to shout at us, हमें कामचोर बोलते थे, ऐसे बोलते थे। अब तो हमारी बात सुनी जा रही है, हमसे इंटरेक्शन हो रहा है रोज इतने बड़े बड़े लोगों का, तो इसका मतलब अभी हमें क्या करना है, ऐसा ना हो जाए कि हमें यहाँ से निकाल दें। ठीक है, तो अच्छे से काम करते रहो। तो ऐसा इनका एक एटीट्यूड आया जब सुपरवाइजरी टेक्निक बदल गई, है ना।
सो अभी आगे चल के जो स्टडीज करी गई उसमें देखा गया कि अब सेकंड लेयर ऑफ स्टडीज करी गई और वहां पर यहां से ही क्या हुआ, कुछ और लड़कियों को लिया गया और जो बची 2 हाइपोथेसिस हैं बाद वाली उनको देखने के लिए। ठीक है, अब ये क्या था, 2 group of 5 girls from each were identified for the study. These girls were trained on individual plan and piecework basis. अब इनको स्टडी किया गया। अब यहां पर देखा गया कि अब जब लड़कियों को स्टडी करा जा रहा है, ठीक है, और देखा जा रहा है तो इन द बिगिनिंग टोटल आउटपुट वेंट अप, उसके बाद क्या हो गया, आउटपुट ये चला पर उसके बाद ये एक जैसा हो गया। ठीक है, और इन द सेकेंड ग्रुप, एक ग्रुप के साथ ये हुआ, सेकेंड ग्रुप में ऑल्दो दे वर प्लेस्ड ऑन इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान, दे वर सब्जेक्टेड टू वेरिएशन इन रेस्ट पीरियड ड्यूरेशन और चेंज इन द आउटपुट वर रिकॉर्डेड। ठीक है, यहां पर भी ऐसा रिकॉर्ड हुआ। ये दोनों में ही कुछ ऐसा रिकॉर्ड होता है कि आउटपुट चेंज तो हुआ है पर उतना कोई लिंकेज नहीं है। ठीक है, उन्होंने देखा इन दिस ग्रुप ऑल्सो पीरियड ऑफ 14 मंथ देयर वाज एन एवरेज राइज इन द आउटपुट ऑफ द पीरियड। फिर जाके देखा थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है और बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस तो होता नहीं है। ठीक है, रिसर्च टीम ने ये एक्सप्लेन किया कि फोर्थ हाइपोथेसिस को भी हम रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर कि पीस रेट इंडिविजुअल वेज रेट सिस्टम हैज इंक्रीज द आउटपुट, ऐसा नहीं है, कुछ और हो रहा है। एक ग्रुप पहले वाले ग्रुप को भी देखा, उसमें भी एक सेंस ऑफ इक्वालिटी आ गई। दूसरे ग्रुप में भी हमने लगा के देखा, वहां भी इंडिविजुअल प्लान लगा के देखा और इनके साथ तो कंडीशन एक जैसी रही, रेस्ट पीरियड चेंज किया, ड्यूरेशन ऑफ वर्क चेंज किया, उनका भी आउटपुट देखा लगभग सेम आया। तो इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि वेजेस के ही बदलने से कुछ हो रहा है, देयर इज समथिंग एल्स दैट लेड टू द आउटपुट। ठीक है, अब बचती है 5वीं हाइपोथेसिस। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हाइपोथेसिस इन्होंने कर ली मिसप्रूव, मतलब डिसप्रूव कर दी कि नहीं ये काम नहीं चल रही है और इनसे जो बहुत ही डायनेमिक कुछ भी हमें देखने को मिल रहा है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है पर ये जो हमने पहले वाले स्टडी में क्या किया था, हमने इंसेंटिव भी कम कर दिए थे फिर भी बढ़िया काम हो रहा था, इसके पीछे कुछ और है। ठीक है, 2 चीजें जैसे मैंने बताई। अब बचती है 5वीं हाइपोथेसिस की सुपरवाइजरी टेक्निक वाली। ठीक है, ओके, सो लास्ट ऑफ द टेस्ट ऑफ लास्ट हाइपोथेसिस, यहां पर क्या हुआ कि चेंज इन सुपरवाइजरी टेक्निक हैज लेड टू इंप्रूवमेंट इन द एटीट्यूड एंड आउटपुट। अब यहां पर क्या हो रहा था कि these girls were having interaction with High and Mighty, with the Howard team, with the Hawthorne study group. So different set of manager, different faces they were interacting with, change and atmosphere change, different set of manager, they were also changes in their attitude also. Okay, these managers were not as hard, not hard as their supervisors. ठीक है, they were sophisticated and better, they had better language skills, better education skills, atmosphere were more relaxed and congenial. So अभी पहले क्या होता था कि whenever some of the supervisors were there, they were very minutely seeing these girls. ठीक है, I can remember, let me recall, okay, जब मैं अपनी as a post graduation में I was also doing one of the study in a company that was that was a production firm, right? So मैं तो सुपरवाइजर की तरह देख रहा था। ठीक है, तो जब भी मैं जाता था तो पीपल, टेलर्स थे वहां पर ऐसे 200-300 टेलर, आई यूज्ड टू नोट देयर टाइम, they become very conscious and they were, कभी कभी वो क्या घबरा जाते थे। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हो रहा था इनके साथ भी इनिशियली इनके सुपरवाइजर्स के साथ, पर जब ये नए टाइप ऑफ मैनेजर से मिली तो उसके बाद इनको एटमॉस्फेयर रिलैक्सेशन लगने लगा। ठीक है, और कंजीनियल हो गया। कंजीनियल मतलब बेटर फॉर वर्क। कंजीनियल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो जो भी एनवायरनमेंट बेटर हो जाता है। ठीक है, यहां पर ये बहुत ज्यादा क्या करते थे, इनको रोका टोकी नहीं करते थे। सो गर्ल्स वर अलाउड टू टॉक फ्रीली एंड सुपरवाइजर्स आल्सो टुक पर्सनल इंटरेस्ट। ठीक है,
अभी गर्ल्स जो थी, क्योंकि ये अलग ग्रुप में स्टडी करनी थी, तो यहाँ पर इन गर्ल्स को आराम से बोलने दिया जाता था. दे कुड आस्क एनीथिंग, दे वर एबल टू क्रैक जोक्स, they were able to communicate what is happening at your home. अपना काम भी चल रहा है, बात भी चल रही है. और ये सुपरवाइजर भी इनमें, क्योंकि अब सुपरवाइजर्स के सामने भी देख रहे हैं, सुपरवाइजर देखने आ रहा है तो 5 गर्ल्स इधर हैं, 5 गर्ल्स उधर हैं, वो क्या है, वो अब मैनेजर्स के सामने, साइंटिफिक रिसर्चर्स के सामने क्या करेगा, ऐसे तो डांट नहीं सकता. तो वो भी इंटरेस्ट लेने लगा कि ओके क्या चल रहा है. अब ये था भी लंबा एक्सपेरिमेंट, 14 महीने 1.5 साल ऐसे एक्सपेरिमेंट है. तो उनको भी लग गया कि इफ सुपरवाइजर्स का एटीट्यूड भी चेंज होना शुरू हो गया, उनको भी लगा कि इफ मैनेजमेंट हैव चूजन देम, देन ठीक है भाई कि मैनेजमेंट इनको बैक कर रहा है, हमें ना अब अपनी जो असलियत है वो नहीं दिखानी है इनके सामने. ओके, सो देयर वाज बेटर सोशल सिचुएशन डेवलप्ड विद इन द ग्रुप. अब ग्रुप के अंदर बेहतर सिचुएशन डेवलप हो गई. दीज पीपल, दीज गर्ल्स वर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, इंटरैक्शन हो रहा था, इमोशनली कनेक्ट हो रही थी. ठीक है, दे वर गेटिंग बेटर ट्रीटमेंट. दे वर इंटरैक्टिंग विद न्यू डिफरेंट सेट ऑफ मैनेजर, न्यू पीपल. और इनकी कंडीशंस जो थी, इमोशनल कंडीशंस भी क्या थी, वो चेंज हो गई थी अब. So their emotional conditions also change. So that was the reason. फिर ये देखने को मिला कि this is the reason why there is a change in their attitude. क्या हुआ बेटा? सर how I removed, किसने रिमूव कर दिया? कहां से रिमूव करा है? अनुज क्या लिख रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया. अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है. नाउ ओके ओके ओके, ठीक ठीक है. ओके, अपना नाम डाल दिया करो बेटा, जैसे और लोग डालते हैं एनोनिमस. नहीं, अपना रियल नाम डाल के आया करो, है ना, तो उसमें मुझे पता ही नहीं चलता है कोई और नया स्टूडेंट तो नहीं आ गया एनोनिमस. ओके, चलो ठीक है. सो सो देयर वाज अ बेटर सोशल सिचुएशन डेवलप विद इन द ग्रुप. ग्रुप के अंदर बेटर सोशल सिचुएशन डेवलप हो गई. जैसे मैंने बताया, इंटरेक्शन हो रहा है, एज अ ग्रुप फील करने के लिए, टीम स्पिरिट आ गई, फेल्ट स्ट्रांगली अबाउट देयर वर्क. नाउ देयर वर्क वाज समथिंग दैट वाज गिविंग देम न्यू सॉर्ट ऑफ अटेंशन. ठीक है, और एक्सपेरिमेंटेड ओरिएंटेड सुपरवाइजर, नॉट रिगार्डेड एज बॉस. ठीक है, ये बॉसिज्म नहीं था इनमें, क्योंकि अब ये बॉसिज्म नहीं था तो इसकी वजह से इनका एटीट्यूड इनको ठीक लगता था. आप बताओ, मैरी पार्कर फॉलेट ने भी तो यही कहा था ना कि योर ऑर्डर शुड नॉट शो बॉसिज्म. इवन इफ यू आर अ बॉस, इट शुड नॉट रिफ्लेक्ट इन योर ऑर्डर, राइट. लैंग्वेज शुड बी गुड. इसीलिए जो हम जब मैरी पार्कर फॉलेट को जानते हैं, पढ़ते हैं, तो वो भी कुछ कुछ ऐसा ही बोल रही थी. वो भी इंडस्ट्रियल ग्रुप्स को स्टडी कर रही थी. वो भी जो इंटरैक्शंस होते हैं उससे कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको स्टडी कर रही थी. और वो भी बात कर रही थी कि बॉसिज्म नहीं होना चाहिए, और उनकी बात भी यहाँ प्रूव हो रही है. तो कहीं ना कहीं इन स्पाइट ऑफ, ये कल भी मैंने डिस्कस कर लिया था, आज दोबारा से बता रहा हूं, इन स्पाइट ऑफ बीइंग of the same time period of scientific management thought, she was ahead of her time, because whatever she was whatever she was working on was definitely indicating towards something else, which was finally discovered by Elton Mayo. Is that okay? समझ में आया ये बात? कल मैंने बताया था बॉसिज्म वाला. हाँ,
ठीक है, गुड गुड, ठीक है, ओके। सो एग्जाम एक्सपेरिमेंट ओरिएंटेड सुपरवाइजर थे, ये भी उनके साथ सही बोलते थे क्योंकि ये ग्रुप ऑफ गर्ल्स हैं एंड दे आर नॉट टू बी ट्रीटेड बैडली बिकॉज दे आर अंडर द स्टडी ग्रुप, राइट। सो ऐसा कुछ चल रहा था जिससे कि इनके माहौल में अंतर आने लगा। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था कि मॉडिफाइड मैनेजरियल प्रैक्टिसेस हो रही थी, ठीक है। वर्कर्स वर कंसल्टेड एंड एडवाइज्ड अबाउट द चेंजेस एंड देयर व्यूज वर कंसिडर्ड। तो यहां पर अब जो ये छोटा ग्रुप था इनके साथ मैनेजरियल प्रैक्टिस जो थी ना पहले की, वो अलग थी। देखो अभी एफडब्ल्यू टेलर और आपके फेओल ये सब क्या कह रहे थे कि स्पिरिट डी कॉर्प्स होनी चाहिए, याद आया, स्पिरिट डी कॉर्प्स होना चाहिए कि the responsibility should be shared between the managers and the workers। अभी ठीक है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के थे, पर रियल साइंस में यहां पर कुछ ऐसा हो रहा था, ठीक है। वर्कर्स वर कंसल्टेड, एडवाइज अबाउट द चेंजेस, देयर व्यूज वर कंसिडर्ड, ये हो रहा था। दिस प्रोसेस अलाउड द वर्कर्स टू फील फ्री टू एयर देयर प्रॉब्लम्स एंड दे एस्टैब्लिश न्यू इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट्स विद देयर फेलो वर्कर्स और सुपरवाइजर्स। तो यहां पर ऑल टुगेदर देखा जाए तो ये चीजें हो रही थी जिसकी वजह से उनको बेटर फील हुआ। ओके, सो अभी हम बात करते हैं एक और एक्सपेरिमेंट की जो है मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम 1928 से 31 का, ठीक है। यहां पर स्टडी किया गया ह्यूमन एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट्स को। तो एक तो कंक्लूजन निकल के आ गया, हाइपोथेसिस 5 आई, उसमें ये निकल के आ गया कि 4 तो हाइपोथेसिस रॉन्ग ही प्रूव हो गई थी, उन पे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। 5वीं हाइपोथेसिस थी कि सोशल ग्रुप वाली, तो ये प्रूव हो गया कि सोशल ग्रुप के फॉर्मेशन से क्या हुआ, इन सब के बीच में एक सेंस ऑफ कोहेजन बन गया, ठीक है। जैसे अभी आप लोग हो बैच में, मैं हूं, ठीक है, तो अभी हमारे बीच में क्या हो रहा है, एक सोशल रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है। अभी हम बहुत फॉर्मली भी बोलते हैं, ठीक है, बाद में हम इनफॉर्मल भी हो सकते हैं, ठीक है। जब आपका कोर्स कंप्लीट होने लगेगा या वी विल हैव मोर इंटरेक्शन, यू विल कम टू नो मी, आई विल कम टू नो यू। सो ये भी हर जगह हो रहा है। तो ऐसे ही तुम्हें सोचना भी है। अब तुमने मैरी पार्कर फॉलेट को पढ़ लिया और अब एल्टन मायो को पढ़ रहे हो, सो अपने रियल लाइफ में भी इनके बारे में सोचा करो, ठीक है। जो पढ़ लिया वो तो सही है, पर अगर आप रियल लाइफ में इसको करोगे ना, तो एक तो वैसे भी इमोशनली बेटर बनोगे और ये आपको एज अ मॉडल याद रह जाएंगे, ठीक है। सो ओवर हियर ऑल्सो देयर इज स्ट्रक्चर्स वी आर स्टडिंग, देयर इज समथिंग दैट आई एम योर टीचर, यू आर माई स्टूडेंट, बट देयर इज ऑल्सो इनफॉर्मल थिंग्स हैपनिंग। यू शेयर योर प्रॉब्लम, आई शेयर माइन, ठीक है। यू आर सेंडिंग मी मेल अबाउट सर आई हैव रिटन दिस इज माय फर्स्ट टाइम आई एम राइटिंग, you have to tell me how to improve. I am sending, yes, I have written this is how you improve, read those newspapers. So this have always try to use this in your real life. If you will be able to use them, that would be so great. And obviously जब आप अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इन्हें पढ़ रहे हो, at the time of your Masuri training also you will study all these things and you will be using those things into your वर्क एज वेल, ठीक है। तो खैर, सो नाउ यू सी मास इंटरव्यू प्रोग्राम होता है, लगभग 3 साल चलता है। इसमें ह्यूमन एटीट्यूड और सेंटिमेंट्स को देखा जाता है। सो इट वाज लॉन्च टू एक्सप्लोर द एम्प्लॉइज फीलिंग, ह्यूमन एटीट्यूड और सेंटिमेंट बाय द वर्कर सोशल ग्रुप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सोशल ग्रुप में ये देखा गया कि एम्प्लॉइज की फीलिंग कैसी होती है, सोशल ग्रुप अगर बना दिए जाएं तो उनको कैसे लगता है, क्या लगता है, ठीक है, एम्प्लॉइज को, ये देख के करा गया। द वर्कर्स वर आस्क्ड टू एक्सप्रेस फ्रीली। अब लोगों से ये बात करी गई कि इन्होंने ये कहा कि यार देखो ये तो आ गया, अब हमें आगे स्टडी करनी है। तो उन्होंने देखा कि यार ये वर्कर्स तो कुछ बोलते बोलते हैं नहीं, एंड इट इज ऑल्सो ऑलवेज अ टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन में क्या होता है, ऊपर से ऑर्डर आते हैं, नीचे वालों को फॉलो करने होते हैं, ये होता है टॉप डाउन। तो टॉप डाउन अप्रोच है, कुछ वर्कर बोल नहीं पाते हैं, ये क्या कैसा सिस्टम है।
ठीक है, तो इन्होंने जो रिसर्चर्स थे, अब रिसर्चर्स तो कुछ भी सोचेगा ना, ये तो कभी हमेशा इनोवेटिव सोचते हैं, तभी ये सोशल मैन को भी डिस्कवर कर पाए। ठीक है, हु इज सोशल मैन? सोशल मैन इज दैट हु बिलीव्स, हु हैज experience of informal organization, who believes in informal organization, who believes in informal interaction, who feel connected with the other social beings, who work in the work dynamics, interpersonal, ये है social man। तो social man की थ्योरी हो रही है। तो यहां पर अब इन रिसर्चर्स ने ये कहा कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कैसे एटीट्यूड और सेंटिमेंट काम करते हैं, चलो ये देखते हैं। तो इन्होंने बहुत सारे, देखो इंटरव्यू हुए, लगभग इस कंपनी में 24,000 लोग काम करते थे और 21,000 लोगों का इंटरव्यू कर लिया। तो दिस इज वाज द वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट एवर टेकन ऑन द इंडस्ट्रियल ग्रुप्स। ठीक है, ये याद रखने का है। सो द वर्कर्स वर आस्क्ड टू एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली, फ्रैंकली, लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑन द प्रोग्राम एंड पॉलिसीज ऑफ मैनेजमेंट। कि अभी आपसे ही पूछा जाए कि अच्छा बताओ, नए नए तुम आईपीएस ऑफिसर बने हो, अच्छा बताओ यार तुम्हारा जो डीजीपी है कैसा है, ठीक है, तुम्हारा डीआईजी कैसा है, तुम्हें कैसा लगता है? तो अगर वो बहुत खड़ूस आदमी है फिर भी आप कहोगे सर बढ़िया लगता है, बहुत सर बहुत ही बढ़िया है, डांटते हैं ना सर तो मजा आ जाता है मुझे। ठीक है, ऐसे ही बोलोगे। पर धीरे धीरे जब फ्रीली एक्सप्रेस करने लगोगे, पता चलेगा कि यार ये इनफॉर्मल टॉक है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, एक्सप्रेस करने लगोगे। पहली बार एक्सप्रेस करोगे ना तो यू विल फील कि हाँ यार ये सच्चाई है, बट आई डू नॉट, पर ये क्या है, बहुत ही हायरार्की रिजिड रेंस और हायरार्की रिडन ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ किसी ने आज तक हमसे पूछा ही नहीं। ठीक है, सो यही पहली बार हो रहा था कि ऐसे दुनिया, मतलब उन वर्कर्स के लिए जो साइंटिफिक मैनेजमेंट में काम कर रहे थे, जहां टॉप डाउन है, उनके लिए तो ये एक्सप्रेशन ही बहुत था। तो जिंदगी में पहली बार वो फ्रीली एक्सप्रेस हो पाए, हंस पाए, फ्रैंकली लाइक्स और डिसलाइक्स बताए कि मेरा बॉस खड़ूस है, मेरा बॉस डांटता बॉस है, या मेरा बॉस बहुत अच्छा है, वो व्हाटएवर, कि यहाँ की मुझे ये बढ़िया लगता है, वो चीज खराब लगती है, एचआर पॉलिसीज बहुत बढ़िया है, पर क्या कहते हैं कि हमें लंच नहीं मिलता सही से, रेस्ट आवर नहीं मिलता, हमारे सुपरवाइजर्स बहुत अच्छे नहीं है, पर हमारा सबसे बड़ा मैनेजर बहुत अच्छा है, या व्हाटएवर। ठीक है, सो फ्रैंकली अबाउट लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ द प्रोग्राम एंड पॉलिसीज ऑफ द मैनेजमेंट, वर्किंग कंडीशन, फिजियोलॉजिकली कितने रेस्ट मिलते हैं, छुट्टी मिलती है नहीं मिलती है, कब आना होता है, एंड बिहेवियर ऑफ द बॉस विद द वर्कर्स। ठीक है, इन सब चीजों पे इनसे पूछा गया कि आओ यार बताओ, शेयर करो क्या चल रहा है, मतलब कि व्हाट टाइप, बताओ। ये सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, आपसे पूछे जा रहे हैं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, हम किसी को नहीं बताएंगे, एंड वी आर नॉट गोइंग टू टेल, वी आर कंडक्टिंग 21,000 इंटरव्यू, वी डोंट इवन रिमेंबर कि, और एनोनिमस रख लेंगे, ऐसा कुछ कहा। तो उन्होंने बताया कि सर बहुत कुछ चीजें बहुत खराब हैं सर, कुछ चीजें बहुत बढ़िया हैं सर, है ना, ऐसा करके। सो आफ्टर फ्यू डेज देयर वाज अ चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स। अब ये चलता रहा, तो जिन वर्कर्स से पूछा गया था उनसे डिटेल में पूछा गया कि बताओ भाई बताओ, however no reforms were introduced, that change was seen because of the following reasons। अब ये देखा गया कि वर्कर्स में कुछ पॉजिटिवनेस आ रही है। ठीक है, वर्कर्स को खुश दिखाई दे रहे हैं, काम भी सही कर रहे हैं, और ये ना तो कुछ चेंज हुआ, ना तो इनका इंसेंटिव बढ़ाया गया, ना इनके रेस्ट आवर्स बढ़ाए गए, ना इनको और कुछ सहायता दी गई, पर ये हो क्यों रहा है? ठीक है, तो इसके पीछे जो कारण था वो देखा गया। सो अब ये कारण क्या था कि वर्कर्स थॉट दैट देयर वर्किंग कंडीशन वर चेंज बिकॉज ऑफ देयर कंप्लेंट्स, और ऐसा कुछ हुआ नहीं था। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, पर उनको ये लगा क्योंकि हमने कंप्लेंट करी है तो उनको अगले दिन से दिखाई देने लगा, अरे यार ये तो सही हो रहा है, कि देख आज तो उसने हमें डांटा नहीं, नोबडी स्कोल्डेड अस, हाँ क्योंकि हमने कल इंटरव्यू में बोला था ना कि हमें डांटता है, इसलिए हो रहा है। ठीक है, तो एक सेंस ऑफ, जिसे हम बोलते हैं प्लेसेबो इफेक्ट टाइप का आने लगा, कि जब आप गोली खा लेते हो, चौक की गोली खा ली और आपको लगता है कि आपको नींद नहीं आती, उस दिन बहुत जल्दी नींद आ गई, ऐसा कुछ साइकोलॉजिकली होने लगा। ठीक है, they also felt that their wages were better although the wage scale remained the same, और वो कुछ दिन बाद कहने लगे यार it is not that bad, you know, other organization don't even pay this much, there is always, if you are late by 5 minutes they cut the price, at least we are having organization जहां पर बहुत अच्छी सैलरीज हैं, नहीं बहुत अच्छी सैलरीज हैं भाई, you don't know। so everybody was feeling better though there was no change in the managerial practices, there was no rest hours, there was nothing that changed, and people were saying okay whatever it is, but they pay good, right? After interviewing
approximately 21,000 workers and analyzing their complaint, it was found that there was no correlation between the nature of complaints and facts. ठीक है, ये भी देखा गया कि जब 21,000 लोगों को ना इंटरव्यू करा गया, उनसे जो पूछा गया, तो देखा गया कि बहुत लोगों ने तो आके खाली बात करने के लिए खुश होने लगे कि यार चलो बात करके आते हैं, और वो जो उनकी कंप्लेंट थी ना वो भी नकली थी, कुछ ऐसा था ही नहीं। अगर वो बहुत ही कम जो कंप्लेंट थी वो सही पाई गई, ज्यादातर कंप्लेंट ऐसे ही बना दी उन्होंने, और बस कि मैं तो 15 मिनट जा रहा हूं और स्कॉलर से बात करके आऊंगा, मस्त एकदम बात, ठीक है, ऐसा चल रहा था। तो फैक्ट में जो जमीन पे हकीकत थी कंपनी में और उनके कंप्लेंट में भी कोई कोरिलेशन नहीं था, वो भी कुछ और ही फेंक रहे थे और यहां कुछ और ही चल रहा था, ठीक है। अब यहां पर ये देखा गया, इट वाज कंक्लूडेड कि द एक्सपेरिमेंट सक्सीडेड इन आइडेंटिफाई फॉलोइंग 3 एस्पेक्ट्स। क्या? कि वर्कर्स फील इलेटेड इफ दे वर अलाउड टू एक्सप्रेस फील फ्रीली, कि वर्कर्स को पहली बार एक्सप्रेशन वो कर पा रहे थे, दे वर फीलिंग हैप्पी अबाउट इट, कि एटलीस्ट समबडी हैज टॉक टू अस, ठीक है। तो एक उससे ही क्या हुआ, उनके मन में एक खुशी का माहौल आने लगा, ठीक है। दे डेवलप्ड अ फीलिंग दैट कंडीशन इन द एनवायरनमेंट वर चेंज्ड फॉर देयर बेटर, ऑल्दो कुछ भी चेंज नहीं हुआ था, ठीक है। और ये भी सोचने लगे कि एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, हमारी सैलरी भी बढ़िया है, और उनको लगने लगा कि हमने शिकायत करी तो इसकी वजह से ये चीज चेंज हो गई, बल्कि कुछ चेंज नहीं हुआ था, उनका नजरिया बदलने लगा था, ठीक है। और सबऑर्डिनेट शुड बी अलाउड टू कमेंट फ्रीली एंड अबाउट देयर सुपीरियर, उनको ये भी स्टडीज में सामने आया कि बेसिकली कि जो फीलिंग्स हैं उसके बारे में सबको क्या होना चाहिए, आराम से बात करने का मौका होना चाहिए, और सुपीरियर के खिलाफ ना हमें बात करने का मौका होना चाहिए, क्योंकि सुपीरियर हमारी कभी सुनते नहीं है, किसी से हम उनकी शिकायत नहीं कर पाते हैं, एटलीस्ट आपने सुना, ठीक है। इसी का एक्सटेंशन है ये तीसरे पॉइंट का। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द रियल प्रॉब्लम्स, पर्सनल फीलिंग एंड सेंटिमेंट ऑफ वर्कर्स, ठीक है। They were derived from both an employee's personal history and his social situation at work without appreciating their feeling and sentiment. तो बेसिकली ये होता था कि पहले ना कोई ध्यान ही नहीं रखता था इनकी पर्सनल प्रॉब्लम का, पर्सनल फीलिंग्स का, सेंटिमेंट्स का, और कोई देखता ही नहीं था एम्प्लॉय की हिस्ट्री के हिसाब से, सोशल सिचुएशंस को कोई स्टडी ही नहीं करता था, ठीक है। तो ये बेसिकली चीजें वहां से आई निकल के। तो इससे ये पता चला कि अगर आप खाली एक्सप्रेस करने को कह रहे हो लोगों को तो भी फर्क पड़ता है वर्किंग कंडीशन पे। और यहां पर जिनका इंटरव्यू हो रहा था, दे ऑल्सो फेल्ट लाइक अ ग्रुप, दे ऑल्सो फेल्ट कि एवरीबडी स्टार्टेड टॉकिंग। ये जो ग्रुप होता था वो जब वापस जाता था तो एवरीबडी यूज्ड टू आस्क देम कि ओके क्या बोला तूने, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ फीलिंग से क्या हुआ, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनने लगी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वहां एस्टैब्लिश हो गया, और ये लोग आपस में जब बोलने लगे दे फेल्ट एज अ ग्रुप ऑल्सो, ठीक है। ऑल दिस वेंट आउट फीलिंग बाहर निकलने लगी, पेंट आउट फीलिंग बाहर निकलने लगी, ठीक है, एक्सप्रेस करने लगे और शिकायत भी करने लगे। उन्होंने ये कहा भी बाद में कि देयर शुड बी अ मैकेनिज्म वेयर वी कैन कंप्लेन, वी कैन से व्हाटएवर वी वांट टू से अबाउट आवर बॉसेस, देयर शुड बी देयर, ठीक है। तो अभी फिर होता है आपका सोशल ऑर्गेनाइजेशन का बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट। अगला एक्सपेरिमेंट हुआ जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के एक्सपेरिमेंट के बारे में बोला जाता है। तो यहां पर था कि ये अब यहां पर कोई स्टडी ग्रुप नहीं बनाया गया, ठीक है, और यहां पर लोगों को ऐसा नहीं था कि नेचुरली जो थे वही कर दिया गया, कोई अलग से वर्क परफॉर्म नेचुरल कंडीशंस में कर रहे थे, इन पे कोई बहुत विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा था, पर फिर भी वहां पर कुछ चीजें हो रही थी। क्या? This experiment was done to observe and analyze the group behavior, worker performing tasks in natural settings, ठीक है। तो अभी नेचुरल सेटिंग में थी, कुछ इनके साथ ऐसा नहीं हुआ कि इनका वो बढ़ाया गया। अभी पहले तो शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत ये हुई थी कि फिजिकल रेस्ट दे दो। फिर दूसरी शुरुआत पहले वाले में, ठीक है, जहां पर मिल में काम कर रहे थे, स्पिनिंग में, कि रेस्ट देने से काम चलता है, और रेस्ट करने से, पर रेस्ट तो देने से काम चलता है, पर वो रेस्ट देने से उनके घर वालों के साथ भी संबंध सही हुए थे, वहां भी सोशल एस्पेक्ट था।
फिर ये हुआ कि एल्यूमिनेशन कर दो, लाइटनिंग कर दो, वो भी फेल हो गया कि लाइटनिंग नहीं, सोशल ग्रुप लड़कियों में बन गया, उसकी वजह से चेंज आया। फिर आया कि आपका इंटरव्यू प्रोग्राम, कुछ भी नहीं बदला, केवल इंटरव्यू लिया, तब भी लोगों में ऐसा लगने लगा कि ये तो बहुत बढ़िया जगह है, और उन्होंने सजेशन भी दे दिए। हाँ कनीज बताओ। हाँ जी कनीज बोलिए, आप कुछ बोलना चाहते हैं? No sir, no sir. अच्छा, गलती से हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब इंटरव्यू वाला भी हो गया, कुछ भी नहीं चेंज करा ना इंटरव्यू में भी, तब भी उनको लग रहा है कि बढ़िया हो रहा है हमारे साथ, ठीक है। अब ये बैंकिंग वायर है, यहां पर भी केवल ग्रुप बना दिए गए कि 3 ग्रुप बन जाओ, एक जैसे ही हैं, कुछ चेंज नहीं करा कि अब काम करो चलो, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, फॉर एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कंसिस्टिंग ऑफ 3 ग्रुप्स ऑफ वर्कमैन हुज वर्क वर इंटर रिलेटेड वर चूजिंग। अब ये क्या था, बैंक वायरिंग के रिलेटेड था ये, बेसिकली तार वार जोड़ने का काम कुछ कर रहे थे, टेलीफोन के तार जोड़ने का, सोल्डरिंग मतलब उनके कोनों को वेल्डिंग करके डालने का, ऐसा कुछ काम था, ठीक है। देयर जॉब वाज टू सोल्डर, फिक्स द टर्मिनल, जैसे वायर के ये टर्मिनल निकल गए, इनको सही करना, एंड फिनिश द वायरिंग। इट वाज नोन एज द बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। वेजेस वर पेड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप इंसेंटिव। यहां पर ये हो रहा है, देखो ग्रुप इंसेंटिव की एज अ ग्रुप सब वर्क करोगे कि तुम सब ग्रुप हो, हाउ you one will work would affect everybody, and if the group would produce more, then everybody would have a good return, right? So there was wages were paid on the basis of group incentive plan, and each member got his share on the basis of total output of the group. So if one for all for one वाली बात थी, ठीक है। It was found that workers had fixed a clear cut standard. अब यहां पर पता चला कि ग्रुप्स को 3 में विभाजित कर दिया, 3 ग्रुप्स आर वर्किंग टुगेदर, ठीक है, एंड सेपरेटली, आई मीन विद इन द ग्रुप वर्किंग टुगेदर, दे आर डूइंग देयर वर्क। पर ग्रुप के हिसाब से जब पेमेंट दी जाने लगी, तो इन ग्रुप्स के अंदर खुद भी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हो गया, जो कि खुद ही ऑटोमेटिकली होने लगी। कैसे हुआ कि यहां पर काम करने वाले हर व्यक्ति ने, ग्रुप ने एक स्टैंडर्ड बना लिया कि देखो भैया ऐसा है कि ज्यादा मेहनत करके मत दिखाओ, ज्यादा मेहनत करके दिखाओगे तो क्या होगा कि बॉस ना हमारा वही स्टैंडर्ड बना देगा कि ऑप्टिमम प्रोडक्शन, और उसके ऊपर बोनस देगा, पर हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। फिर ऐसा भी मत करो कि कम भी मेहनत मत करो, अगर ग्रुप में कोई भी कम मेहनत करेगा तो एज अ ग्रुप हमें पेमेंट नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा और ज्यादा काम कर सकते थे, पर जानबूझ के थोड़ा कम काम करते थे एज अ ग्रुप। सो इनके आपस में व्हाट वाज हैपनिंग, ये आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग बन रही थी। It was found that workers had fixed a clear-cut standard of output which was lower than management target. मैनेजमेंट कह रहा है कि 1 घंटे में 10 बनाना है तो ये 9 बनाते थे, 8 घंटे में इनको 100 बनाना है तो ये 90 बना के जाते थे, ठीक है। तो क्योंकि कोई पैसा तो कट नहीं रहा है उसमें, और ग्रुप के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो इनको ऐसा लगता था कि इफ वी विल वर्क टू मच हार्ड, सो मैनेजमेंट वुड फिक्स आवर आउटपुट दैट ओनली। तो थोड़ा सा कम करके चलो, इतना कम कि मैनेजमेंट बहुत भी स्ट्रिक्ट ना हो जाए। हाउएवर दे वर केपेबल ऑफ इंक्रीजिंग देयर आउटपुट, वो जानबूझ के थोड़ा सा ये लेवल था तो इसको यहां पर रखते थे, और ये भी पता चला कि दे वर केपेबल ऑफ इंक्रीजिंग देयर आउटपुट, देन आल्सो दे चूज नॉट टू डू इट, ठीक है। व्हाई? अब यही स्टडी हुई जो इट वाज फाउंड दैट द ग्रुप डिड नॉट अलाउ इट्स मेंबर टू इंक्रीज और डिक्रीज द आउटपुट। नाउ nobody gave them any incentive, nobody gave them any more money or something, but still they were believing and controlling themselves. So within the organization there is also an informal organization which works very perfectly. This is the example. Social order, they were highly integrated with their social structure, and informal pressure was used to set right the erring member, ठीक है। अब सोशल स्ट्रक्चर हो गया था, वहां अपने आप कुछ लीडर बन गए थे विदाउट बीइंग अ लीडर। जैसे 6 लोग हैं कहीं पे बैठे हैं, सो एवरीबडी वुड से समथिंग,
एंड स्लोली विद इन द 6 पीपल देयर वुड बी समबडी ग्रुप का लीडर बन जाएगा। कोई चुनाव नहीं हुए, कोई यूपीएससी क्रैक नहीं करा, उनमें इनफॉर्मल टॉक्स हो रही थी, देन ऑल्सो समबडी हैज बिकम अ लीडर। सो ऐसे ही यहां पर हो रहा था, और ये इनफॉर्मल प्रेशर कर रहे थे कि देख भाई डोंट वर्क टू हार्ड, ओके, इफ यू विल वर्क टू हार्ड कि तुम्हारी मजाक उड़ाई जाएगी, क्यों कर रहा है इतना हार्ड वर्क, एंड you are working less, and if you will keep working less we will not share lunch with you, we will not give chocolates, ठीक है, और जिस गाड़ी में बैठ के आते हैं वो भी छोड़ जाएंगे तुझे, फोन भी नहीं करेंगे रात को क्यों उठाने के लिए, ऐसा कुछ, ठीक है। मतलब अगर मैं पर्सनल एग्जांपल दूं तो ऐसे ही होता है ना। सो द फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट वाज मेंटेन्ड फॉर ग्रुप सॉलिडारिटी, कि अब ग्रुप में एक स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं, कोई भी ज्यादा कोई भी कम नहीं करेगा, और अब ये बना दिए हैं वन शुड नॉट, इन्होंने कहा ये नियम बना दिए, रूल्स बना दिए, रूल्स क्या बना दिए, और ये इनफॉर्मल रूल्स हैं, ये इनफॉर्मल रूल्स हैं, किसी ने भी कहा नहीं है, फॉर्मली स्ट्रक्चरली कहीं से नहीं आए हैं, कोई बॉस नहीं है इनका जो कह रहा है ऐसा करो, ठीक है, पर वो ये खुद डिसाइड कर रहे हैं। वन शुड नॉट वर्क टू मच, इफ वन डज ही इज रेट बस्टर, ठीक है, अगर ज्यादा काम करेगा तो वो रेट बस्टर होगा, क्यों, क्योंकि बेसिकली वो क्या कर देगा कि ही इज वर्किंग मोर, एंड इफ द ग्रुप का रिजल्ट 100 बनाने को कहा है 105 कर देगा, तो नेक्स्ट डे द मैनेजमेंट विल गिव देम 105 का टारगेट, तो ये तो बैड है, रेट बस्टर है, ये खराब करता है रेट को, ठीक है। और वन शुड नॉट टर्न आउट टू लिटिल वर्क, इफ वन डज ही इज अ चेसलर, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा काम कर रहा है, अगर ऐसा कर रहा है तो वो नुकसान पहुंचाने वाला है, ठीक है। और वन शुड नॉट टेल सुपीरियर एनीथिंग डेट्रीमेंटल टू एन एसोसिएट, इफ वन डज ही इज अ स्क्वीलर, स्क्वीलर मतलब रोने धोने वाला, हमेशा जो वाइनिंग करता रहता है, रोता रहता है, कंप्लेनिंग, तो ऐसा स्क्वीलर है, ही इज अ बिग टाइम स्क्वीलर, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। सो अभी जैसे ये 6 लोग हैं लेट अस सपोज, ठीक है, 5 लोग हैं जितने भी हैं ये, ठीक है, अभी ये अगर इसने इसकी शिकायत कर दी, सो देन सब लोग इसे चिढ़ाएंगे, ओ यू आर द वन हु कंप्लेन्ड अबाउट दिस, ओके, इफ ही हैज टेकन 15 मिनट एक्स्ट्रा इन लंच, तुम्हारा क्या जा रहा था भाई, व्हाई आर यू बॉस, आर यू बॉस का चमचा और व्हाट, ऐसे करके इसको कहते थे तुम तो रोतडू हो, ठीक है। सो बेसिकली ऐसा चल रहा था वहां पर, तो ये इनफॉर्मल रूल सेट कर दिए थे अपने लिए इन्होंने, और वो इनफॉर्मल रूट को हर कोई फॉलो कर रहा था, ठीक है। अब ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बन के आ रही है, यही एक सोशल ऑर्डर क्या है डिपिक्ट कर रही है, कि विदाउट एनी एक्सटर्नल order there is a new set of order being made by informally, there is a leadership and everybody is trying to control each other's way of performance, right? Or one should not attempt to maintain social distance or act officious, officious मतलब official की तरह काम मत करो, even if one is inspector for example, he should not act like one, ओके जैसे ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में ऐसा भी हो सकता है एक सुपरवाइजर हो, एक सीनियर इलेक्ट्रीशियन हो, एक 3 जूनियर इलेक्ट्रीशियन हो, एक इंटर्नशिप वाला हो। तो इन्होंने कहा कि देखो भाई ऐसा है, अभी अपना 10 लोगों का ग्रुप है, नो यहाँ पर कोई भी बॉस नहीं है, ओके, अब ये अपन हमारे लोगों का ग्रुप है, और कोई बॉस भी था तो उसको भी कहा कि डोंट बिहेव लाइक अ बॉस, इवन इफ समबडी इज, don't act like officious, don't believe we are a group, okay, senior इनियर हो गए तुम, ठीक है, इस ग्रुप में इनफॉर्मली हम बात कर रहे हैं, so don't like act as a boss, और for example he should not act like one, अगर कोई इंस्पेक्टर भी है, टाइम इंस्पेक्टर, कॉस्ट इंस्पेक्टर भी है, he should not or she should not work and behave like a inspector because we are a group and we decide, this is informal organization। जब बॉस के सामने होंगे तो हम तुम्हें सर बोलेंगे, पर वैसे नहीं बोलेंगे, भैया बोलेंगे, नहीं बोलेंगे वैसे, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो रहा था यहां पर, ठीक। अब कंक्लूजन्स क्या थे इसके, तो मायो एंड रिसर्चर्स कंक्लूडेड दैट द बिहेवियर ऑफ टीम हैज नथिंग टू डू विद मैनेजमेंट ऑफ जनरल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द प्लांट, कि यहां पर इकोनॉमिक जो मैन की थ्योरी थी कि यू इंक्रीज द इंसेंटिव एंड पीपल विल वर्क मोर, ऐसा जरूरी नहीं है,
ठीक है, द बिहेवियर ऑफ टीम, इस सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट से ये निकल के आया कि बिहेवियर ऑफ जो टीम था हैज नथिंग टू डू मैनेजमेंट ऑफ जनरल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ प्लांट, ठीक है, और द वर्कर्स व्यूज इंटरफेरेंस ऑफ एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट पर्सनल एज डिस्टर्बेंस, जो बार बार उनको देखने आते थे सुपरवाइजर और कोई गैंग बॉस आ रहा है, स्पीड बॉस आ रहा है, टाइम बॉस आ रहा है, कॉस्ट बॉस आ रहा है, उनको लगता था यार ये क्यों आ गया, व्हाई ही इज कमिंग, ही इज अ डिस्टर्बेंस, राइट, कि कोई फायदा नहीं होता है इन सब चीजों का, ऐसा वो मानते थे, ठीक है। द वर्कर्स कंसीडर्ड सुपीरियर्स एज रिप्रेजेंटेटिव ऑथोरिटी टू डिसिप्लिन द वर्कर्स, ये मानते थे कि ये सुपीरियर्स आते हैं, ये ऑथोरिटी की तरफ से आते हैं हमें डिसिप्लिन करने, ठीक है। देयर लॉजिक, द लॉजिक ऑफ एफिशिएंसी डूड नॉट गो वेल विद द लॉजिक ऑफ सेंटिमेंट्स, तो ये बार बार जो आके बॉसिज्म दिखाते रहते हैं और दे कम एंड दैट डज नॉट गो विद द लॉजिक ऑफ सेंटिमेंट, मतलब वो इनको पसंद नहीं करते थे, सेंटिमेंटली थी, उनसे चिढ़ते थे बहुत ज्यादा, राइट। एंड वन शुड नॉट मिस द, और क्या कंक्लूजन आया, वन शुड नॉट मिस द ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हाइल एम्फेसिसिंग टेक्निकल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट, कि यही निकल के आया कि टेक्निकल एस्पेक्ट ठीक है, सही है, आपको बेसिक मिनिमम चीजें तो देनी पड़ेंगी, बेसिक मिनिमम आपको सैलरी तो देनी पड़ेगी, पर स्लोली स्लोली इफ देयर इज अ ग्रुप डायनेमिक्स, लेट पीपल इंटरैक्ट, लेट पीपल फॉर्म इनफॉर्मल ग्रुप विद इन द ग्रुप। अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी लोग पार्टी करने चले गए शाम को, तो ये नहीं अरे तुम ऑफिस के बाद क्यों मिले, ऐसा नहीं है। इफ इन लंच टाइम पीपल आर हैविंग इंटरेक्शन, प्लेइंग टीटी, ठीक है, या कुछ भी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, so that should not be a concern for the management, right? And in addition to this technical skills, the management should handle human situation, ठीक है, और motivate, lead and communicate with workers. So there should be, यहां पर ये लड़के कह रहे हैं ना कि one should not maintain a social distance or act officious, तो पहले का क्या था साइंटिफिक मैनेजमेंट में और ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी में भी क्या होता है कि एवरीबडी इज डिटैच्ड, हायरार्की है, मैं तो आईएएस ऑफिसर हूं, मैं क्यों बात करूंगा नीचे वाले सिपाही से, मैं क्यों रेवेन्यू इंस्पेक्टर से या तहसीलदार से बात करूं, आई एम द बॉस, वो ही मुझे फोन करेगा, और मैं तो ऐसे लोगों से इंटरेक्ट भी नहीं करता, ऐसी फीलिंग है ब्यूरोक्रेसी में भी। पर यहां पर सोशल ऑर्गेनाइजेशन कह रही है वन शुड नॉट अटेम्प्ट टू मेंटेन सोशल डिस्टेंस, ये गलत है, और हर समय बॉसिज्म, if one is giving the order it should not sound like a order, what Mary Parker called it, one is a boss but the bossism should not show, ठीक है, यही ये कह रहे हैं कि in addition to technical skill management should handle human situations और मोटिवेट करना चाहिए और लीड और कम्युनिकेट लगातार करना चाहिए विद वर्कर्स। और ऐसा नहीं है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में नहीं कह रहे हैं, स्पिरिट डी कॉर्प्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, फेओल। इसके अलावा शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, ये भी बात कर रहे हैं टेलर। समझ में आया? राइट, ओके, समझ में आया भाई, बताइए, ऑल गुड? Yes, sir. ठीक है, ओके। तो और ये पूरा का पूरा जो हैथरॉन एक्सपेरिमेंट है, इससे क्या क्या कंक्लूजन निकल के आए कि सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर एट वर्क प्लेस, नॉट द फिजिकल कंडीशन ऑफ वर्क प्लेस, डिटरमाइन द एम्प्लॉय मॉरल एंड आउटपुट। सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोशल सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन केवल हायरार्की रिडन नहीं है, बॉस ऑर्डर दे रहा है ऐसा नहीं है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, ठीक है, और वो सोशल सिस्टम की तरह काम करती हैं, वहां पर खुद ही ग्रुप्स बनने लगते हैं इनफॉर्मली। और नॉन इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स, मतलब जो पैसे से रिलेटेड ना हो, एंड सैंक्शंस, और जो फाइन लगाया जाता है, सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द वर्कर्स बिहेवियर, मोरल एंड आउटपुट। नॉन इकोनॉमिक मतलब किसी ने आगे मुझसे बात कर ली अच्छी तरह, जैसे आई रिमेंबर, लेट मी रिकॉल, देयर वाज वन एडीएम सर, his name was Himanshu Gautam sir, ठीक है, लास्ट ईयर he went into Oxford University, एक साल का कोर्स करने, now he is posted in Agra district, so in Muradabad where I was posted he was ADM,
ADM F&R. F&R का मतलब finance and revenue. He was a brilliant guy. He had 700 something rank in UPSC also, but didn't join UPSC, but became SDM. And SDM में 10-12 साल के बाद now he was ADM. So what he used to do, I remember, with every officer he used to talk. अगर उसके जूनियर भी हैं सर के, जैसे मैं था, hello partner, how are you doing, ठीक है. And he used to, whenever there was meetings from our tehsil, I used to go. So if there was meetings, he used to bring samosas, order samosas and chai, and we used to have informal discussion. Then formally कि सर हमने इस महीने इतना कलेक्ट कराया रेवेन्यू, या इस हफ्ते, हर फ्राइडे को मीटिंग होती थी, ठीक है. तो ये मैं अपनी पर्सनल आपको बता रहा हूं. और उनके लिए हम, एटलीस्ट आई वाज मोर डिवोटेड कि यार इवनिंग में सर के पास जाना है, ठीक है. तो सर के पास जाना है तो ऑब्वियसली ही इज सच अ गुड पर्सन. सो नॉन इकोनॉमिक रिवॉर्ड, अगर आपसे अच्छी तरह कोई बोल रहा है, आपकी बात मान ले रहा है, आपसे इंटरेक्शन कर रहा है, आपकी प्रॉब्लम जानने की कोशिश कर रहा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर बिहेवियर, मोरल एंड आउटपुट. वर्कर्स आर नॉट इनर्ट और आइसोलेटेड, अनरिलेटेड इंडिविजुअल, दे आर सोशल एनिमल्स. तो अभी क्या है, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन ये सोचती है कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ही जो मैन को ना सेपरेट कर दिया है फीलिंग से, कि टाइम पे आना, टाइम पे जाना, इससे बात मत करो, हर समय कैमरे में रहना, हर कोई ऑब्जर्व कर रहा है. दिस इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है. एंड यहां पर भी कह रहे हैं वो इनर्ट नहीं है, एक दूसरे से रिलेटेड है. डिवीजन ऑफ लेबर स्ट्रक्चरली ऑन स्पेशलाइजेशन इज नॉट नेसेसरली ये डिवीजन ऑफ लेबर सबसे मोस्ट एफिशिएंट अप्रोच नहीं है, ठीक है. लोग एक दूसरे से सीखते भी हैं और एक दूसरे के साथ काम भी करते हैं, एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं. और वर्कर्स में टेंडेंसी होती है कि वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है. और प्रोडक्शन के नॉर्म्स और बिहेवियर पैटर्न इन स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन से क्या होने लगती है, इफेक्ट होने लगती हैं. इन स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस को, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करना बहुत जरूरी है, ठीक है. लीडरशिप, स्टाइल ऑफ सुपरविजन, कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेशन सेंट्रल रोल निभाता है वर्कर्स के बिहेवियर में, सेटिस्फेक्शन में और आउटपुट में. अगर कोई खड़ूस है तो ऐसा नहीं है कि that is the best way of dealing the things. People are human being and they should be treated respectively. उनकी बात एटलीस्ट सुननी चाहिए, ठीक है. और thus the finding on Hawthorne studies revolutionized the organizational thought and gave rise to new theory of called human relations theory, ठीक है. तो ये है कंक्लूजन. तो अभी हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं. कल को थोड़ा सा इसका रिवीजन करेंगे और इसका क्रिटिसिज्म करेंगे, and then we will move on to new thinker. So that is all I have for today. I believe you must have enjoyed it, and good luck for the day further, and we will meet for sure tomorrow. Thank you everybody.